Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And good evening. While we are talking to the world, so the various parts of world, so everywhere we cannot say good evening. We begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. It is 5 p.m. in Pakistan, 5:01 p.m. in Pakistan. And this is a greeting from Sindhi Language Authority, Government of Sindh. This is 5:31 p.m. in India, and this is 3:01 in Saudi Arabia, 4:01 in United Arab Emirates, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, etc., and the other states of UAE, from where people are also joining us for the sake of learning Sindhi language. And this is 12:01 in the noon at London and United Kingdom, rest of the parts of the United Kingdom. This is 7:01, about to be 7:02, now 7:02 in the morning, AM in the morning, in Washington, D.C., New York, Toronto, and this region. And if we are talking about the Far East, this is 9:02 p.m. In the night in Tokyo and other parts of Japan and the Pacific region. We are talking about Australia. This is 11:02 p.m. at night. And if we talk about New Zealand, though it's in neighborhood of Australia, but it is 1:02, रात के 1:02 हुए हैं वहां पर. तो वहां पर बसने वालों को जो सोने जा रहे हैं उनको गुड नाइट, जो अभी तक जाग रहे हैं उनको लेट गुड इवनिंग. And a good evening, a very suitable and timely good evening to people from Southeast Asia and also from Middle East and MENA. MENA is a region which is the region of जहाँ पर Middle East खत्म होता है और जहाँ से अफ्रीका शुरू होता है. MENA, MENA. By the way, आपको बता रहा हूँ, though this is not part of the course, बहुत सारी चीजें कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन बट सभी जिक्र आपको बता रहा हूँ कि मीना यानी मिडिल ईस्ट, M for middle, E for east, NA, N is north, A is अफ्रीका. तो वो इजिप्ट वाला इलाका जहाँ पर मिडिल ईस्ट खत्म होता है, अरब ममालिक खत्म होते हैं, गो के मिस्र भी अरब मुल्क है. तो वहां से जहाँ से मिस्र से अफ्रीका का आगाज होता है. हैरत अंगेज बात है कि मिस्र है अरब मुल्क लेकिन वो अफ्रीका में शामिल है. So this region is called MENA. So the people from MENA, from Middle East, from Southeast Asia, and most of the parts of Asia, very good evening to those. An early good afternoon and a late good morning to friends from United Kingdom and rest of the parts of most of the parts of Europe, EU, European Union, and a very good morning to those who are watching us from the ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. अमेरिका में भी 6 टाइम जोन्स हैं. वहां पर कहीं पर हवाई में इस वक्त बिल्कुल आधी रात होगी. तो ये बड़ा टाइम का डिफरेंस है. पाकिस्तान के लिहाज से हवाई एक ऐसी स्टेट है अमेरिका की जहां से 15 घंटे का टाइम का फासला है. बहरहाल जी, एनीवेज, this is me, Yasir Qazi, welcoming you to class number 9 of Sindhi language online learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh. And I'm privileged to have this opportunity to welcome you all to this course. And if you have not joined or if you have not learned about the start of this course or anything about the last 8 classes, no problem. You can watch those all on YouTube, on Facebook, and everything is available there. But the interactive sessions are going on, and उसमें से वो इस्तेफादा कर रहे हैं कि जो registered हैं हमारे इस course में. तो आप सबका खैर मकदम. And as I told you, on the behalf of Sindhi Language Authority, Government of Sindh, this is my pleasant responsibility. This is my pleasant duty to welcome you all to this course, which is Sindhi language learning course, online course. And we are going to start this new lecture, which is lecture number 9. I hope that my slides are visible to you. Let me check which participants have joined. Adil Ahmed Sahab is there, Aisha Khan Sahiba is there, Faizan Ahmed Sahab is there, Fazila is there, Iram Naz is there, and Gulfam Rami is there, Jalil Sahab is there, Karim Baksh Sahab is there, Muhammad Hamza is there, Muhammad Asif Aman is there, Maqsood Ali Sahab is there, Muhammad Imran Zakriya Sahab is there, Muhammad Sharjeel is there,
and then Nadeem Sohu be te asan saं गॾु मौजूद आहे, रबिया साहिबा आहे, शाज़ी इसराज आहे, आयशा बलोच साहिबा आहे. I hope my team is recording the attendance, and it should now onwards be recorded strictly, so that we may make sure that whatever is being disseminated is being disseminated well, and you all are receiving it. And if there's any query, you are more than welcome to ask about that query and to make it clear. So this is class number 9. Today is Arba is Arraba, चौथा दिन, हफ्ते का चौथा दिन. Classic calendar में, just as I told you that the week starts from Saturday. So Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, and this Wednesday, चौथा दिन यानी Arba, सिंधी में इसको अरबा कहते हैं, अरबी influence के तहत, right? So this is Arba, 10th of January 2024, class number 9. And this is Sindhi Learning Class Online by Sindhi Language Authority. Welcome to you on the behalf of Sindhi Language Authority and Government of Sindh. And this is an online free certificate course by Sindhi Language Authority. Bismillahirrahmanirrahim. We begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. Allah Sanji Bajar and Ali Shuru. जेको असांजी सोच खां वधीक असां ते महिरबान आहे, असां ते रहम कंदड़ आहे. जेॾो तुंहिंजो नाम बाझ में ओॾाई मना, रीअ थंभे रीअ थूणीअ, तू छपर तू छांव, कुजाड़ो कहाँ तोखे मालूम सबकी. अवल अल्लाह वलीम आला आलम जो धणी. अवल अल्लाह वलीम, वो अल्लाह जेको आला विया आहे ऐं आलम जो धणी आहे, आलम जो मालिक आहे. असां सभई हुन जो धण आहियूं ऐं उहो असांजो धणी आहे. ही इज़ आवर शेफर्ड, आला आलम जो धणी. क़ादिर पंहिंजी कुदरत सी क़ाइम आहे क़दीम, अज़ल खां पहिरीं मौजूद आहे, पंहिंजी पूरी कुदरत पूरी ताक़त सां गॾु, अपनी पूरी ताकत के साथ वो क़दामत से भी क़दीम है. वाली वाहिद वहद, राज़िक रब रहीम. राज़िक भी है, रज़ाक भी है, रिस्क देता है सिर्फ हमको ही नहीं, जो समुद्रों की गहराइयों में है और जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पे हैं, हवाओं की ऊंचाइयों पे हैं और पहाड़ों के अंदर बसते हैं, और पता नहीं कौन कौन से प्लैनेट्स पर कौन कौन सी मखलूकात बसती हैं. उन सब का भी राज़िक और रज़ाक वही है, जिनके बारे में हमें इल्म भी नहीं है. सो सारा सचो धनी चाहिए हमद हकीम, उसी को सराहो कि जो सच्चा मालिक है. और कैसे सराहो, हम कहकर सराहो. करे पाण करीम जोड़ऊं जोड़ जहान जी, जोड़ऊं जोड़ जहान जी. हर चीज को उसने कपल से पैदा किया है, और क्यों पैदा किया है ये तो वही अपनी हिकमत जानता है. करे पाण करीम, वो खुद ही करता है, और यकीनी तौर पर वही जानता है कि वो क्यों कर ऐसा करता है. ओके, वेलकम टू यू ऑल. आई होप दैट जितने ख़वातीन हज़रात ने हमें ज्वाइन किया है, कुछ हमारे दोस्त जैसे ज्वाइन करते जाएंगे तो हमारे साथ शरीक होते जाएंगे. लेट मी मेक श्योर दैट माय टीम हैज़ कन्वेड टू यू रिगार्डिंग the pen and the sheet on which we will be doing some exercises today. So क्या आप तक ये कन्वे हो चुकी है बात? कोई भी एक आप में से चैट में या वैसे भी अनम्यूट करके बता दें कि इज इट कन्वे टू यू दैट यू मस्ट हैव अ पेन एंड अ शीट टू कैरी फॉरवर्ड टुडेज असाइनमेंट्स. ताते छायो कन्वे थी चुको है? ओके, थैंक यू. एंड आई होप दैट माय स्लाइड्स आर विजिबल टू यू. यस सर. ओके, इज देयर एनीबॉडी हु कैन टेल मी कि कल हमने क्या सीखा था? Can anybody tell me? मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, मुझे याद नहीं कल हमने क्या सीखा था. Can anybody guide me? पहले आए अपना नाम बताएं और उसके बाद में बताएं क्या कल क्या सीखा था. मैं भूल गया हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वॉलंटियरली आप में से कोई भी एक बोले, पहले कोई भी बोले अपना नाम बता के. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. आयशा खान है. जी आयशा खान साहब हो, कैसी हैं आप? ठीक है जी सर. जी. क्या जो चार्ट, जी फरमाइए. जबर जो चार्ट, जबर की जदबल. ओके, ठीक है. जबर जो चार्ट पढ़ा था, और कल हमने उसमें क्या पढ़ा था? साल के 12 महीने. साल के 12 महीने, बस यही पूछना चाह. थैंक यू आयशा खान साहब. देयर वाज अ मेल वॉइस अलोंग विद आयशा हु व्हिच सर इज देयर. प्लीज सर अपना तारुफ करवाइए पहले, जब सलाम किया आप दोनों ने एक साथ. असल अगर केयर हो, हु वाज देयर? अस्सलाम वालेकुम सर. मसूद अहमद. मसूद अहमद साहब, वेलकम. मसूद साहब सर कल जी सर जी बताओ बताओ. कल असां पढ़ियोसीं सर ज़बर जो चार्ट, ऐं उन्हीं सां गॾु असां पढ़ियासीं सर जनवरी ऐं फेबरवरी जेके नाला आहिनि इहे कहिड़ी शइ तां रखियल आहिनि. सही आहे, ठीकु आहे. इहे तव्हां असांखे ॿुधायो त इहे जेके आहिनि
उन्हनि जेको आहे पंहिंजे देवताउनि जे नालनि सां रखियल आहिनि। उन्हनि कंहिं अरबी बि ईअं आहे, उन्हनि वरी को जंहिंजी पूॼा कनि था सर, जेके गैर मुस्लिम वग़ैरह आहिनि, उहे हा उन्हनि पंहिंजे देवताउनि तां नाला रखिया आहिनि सर। हा, पर मूं इहो ॿुधायो जनवरी, ग्रीक फेब्रुवरी, ग्रीक मार्च, ग्रीक अप्रैल। देवता जेके आहिनि, मतलब जेके यूनान जो ज़िक्र ग्रीक कयो ख़ासि देवता तौर ते, सर। जी हाँ, यूनान जो। थैंक यू मसूद जी साहब, सर। थैंक यू वेरी मच, वॾी महिरबानी तव्हांजी। हाँ। अच्छा जी, सर माय नेम जी इज जी, जलील सर। जल साहब आई वांट वेलकम। टू ऐड कि कल जो, थैंक यू सर, कल का वेलकम। जुमला था अज केड़ो डी आहे, अज उसका केड़ो वार आहे। अच्छा, उसका मतलब क्या है? आज कौन सा दिन है। आज कौन सा दिन है? ठीक है, दिन है सुहाना। आज 1 तारीख तो नहीं है ना? नहीं सर, आज 10वीं तारीख आज है। 10th है सर। हाँ जी, 10वीं तारीख। थैंक यू सो मच जलील सर, साहब for adding. Anybody else who could not understand any of the things from yesterday's lecture, can anybody be kind enough to ask if you want to ask anything from yesterday? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इमरान जकरिया साहब बात कर रहे हैं? मोहम्मद इमरान जकरिया बात कर रहा हूँ सर। जी, मोहम्मद इमरान जकरिया साहब। सर ये कल हमने पढ़ा, आपने पहली स्लाइड्स में हमें बताया, ये जो मंगल का नाम है इसको अंगारो। अनारो बोलते हैं या उगारो बोलते हैं? क्योंकि गाफ उर्दू अंगारो सर, अंगारो, दिस इज अंगारो, अंगारो, अंगारो। लेकिन इज इट क्लियर सर, सर? लेकिन ये जो गाफ है, जो जिस तरह उर्दू में, पूछिए सर, मैं हमतन गोश हूँ, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर ये गाफ अलिफ गा जो है ये उर्दू में भी इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये सिंधी में जो है इस गाफ अलिफ गा को हम नून के इस पे वो यूज करेंगे नहीं सर, ये गाफ आवाज नहीं में। है, ये गे है, गे। दिस इज एन अदर लेटर। गाफ नहीं है, गाफ हमारे पास अलग है। गाफ गडा हमने पढ़ा था, अगर आप अल्फाबेट को रिवाइज कर ले तो गाफ अलग से है। ये उसमें एक है गे जिसमें नीचे 2 नुक्ते आते हैं, ये है गे जिससे गऊ लिखा जाता है, गाय। और एक है ये अंगारो, ये सिंह हमने पढ़ा था, सिंह जिस पे छपे हुए थे, वो इस गाफ के ऊपर 2 नुक्ते हैं। ये है गे, ये नेजल वॉइस है, नाक से निकलती है, गे सिंह हमने पढ़ा था। सिंह जिस पे छपे हुए हैं, तो ये अलग से एक हर्फ है जिससे अंगारो बना है। दिस इज नॉट अगारो, दिस इज नॉट अंगारो, दिस इज अंगारो, अंगारो, अंगारो। आप जुबान को लहराएंगे दोनों तालुओं के दरमियान और नाक से आवाज निकालेंगे, अंगारो, अंगारो। इफ अब हम जब टेबल्स पढ़ेंगे, अगर आपको टेबल्स इसीलिए पढ़ रहे हैं 20 टेबल्स, ताकि इन तमाम की आवाजें आपको हिफ्ज हो जाए, अजबर हो जाए, जहन नशीन हो जाए, और कोई भी चीज आपके लिए नाकाबिल फहम ना रहे। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आगे वाली टेबल्स में क्लियर हो जाएगी। दिस इज गे, दिस इज नॉट गाफ, दिस इज गे। और इसी तरह से गे होती है, गे। गे में नीचे 2 नुक्ते लगते हैं और गे में ऊपर 2 नुक्ते लगते हैं एक दूसरे के साथ। इज इट क्लियर सर? जी थैंक यू सर। वेलकम सर। एनीबडी एल्स फ्रॉम yesterday's lecture if you want to ask anything? जलील, और मुझे ये पूछना था कि कल हमने पढ़ा था काल तुम्हारो के लिए, जी, काल और तो कल। उसको सिर्फ सभाणे भी कैसे, सुभाणे भी इज कल, कैसे आने वाला कल, सुभाणे आने वाला कल, सुभाणे आने वाला कल। उर्दू में दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। डे आफ्टर टुमारो। नो नो, टुमारो, टुमारो इज सुभाणे, टुमारो इज सुभाणे, डे आफ्टर टुमारो इज परियां, डे आफ्टर टुमारो इज बेदी या परियां। हम इनके बारे में वो जो जिस तरह से आखिरी सेगमेंट करते हैं तो इनके हवाले से हम पढ़ेंगे। तो उसमें फिल वक्त तो हमने वर्ड ऑफ द डे दे दिया सिर्फ कल का, लेकिन आने वाली कल के लिए सुभाणे बोलते हैं, सुभाणे यानी कल, टुमारो। ओके सर, ओके सर, राइट। anybody else from apart from Aisha Khan साहिबा, मसूद साहब, जलील साहब और इमरान जकरिया, इनके अलावा कोई और ऐड करना चाहे कोई चीज? वरना फिर आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज अज जो लफ्ज, हमारा पहला सेगमेंट अज जो लफ्ज, आज का लफ्ज, अज जो लफ्ज। अच्छा, बहुत सारी चीजों में इजाफा होता है, बहुत सारी चीजों में कमी होती है, ठीक है। दौलत में इजाफा होता है, कमी होती है, वक्त में इजाफा होता है, कमी होती है। आजकल मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा, आजकल मेरे पास वक्त बहुत कम है। आजकल मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, आजकल मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मतलब कमी और ज्यादती जिंदगी का हिस्सा होती है, ठीक है। आजकल मेरे पास कपड़े बहुत ज्यादा हैं यार, मैं देना चाहता हूँ अपने छोटे भाई को,
आजकल मेरे पास कपड़े बहुत कम है यार, मैं खरीदना चाहता हूँ। ये कमी और ज्यादती जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो वो माली हवाले से भी होती है, और जो चीजें इंटेंजिबल हैं उसमें भी होती है। यार आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है, यार आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादती और कमी जो है वो जिंदगी का एक हिस्सा है। तो वो जो कमी होती है, उस कमी को सिंधी में क्या कहते हैं? वैसे तो बहुत सारे अल्फाज हैं, मैं सिर्फ एक लफ्ज को कोई, क्योंकि सिंधी में बल्कि हर जबान में हर हर लफ्ज के नेमुल बदर या सिनोनिम्स बहुत सारे होते हैं। सारे अगर पढ़ने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सिर्फ एक लफ्ज का देता हूँ आपको, जो प्योर सिंधी में बोलते हैं उसको बोलते हैं खोट। कमी को बोलते हैं खोट। खोट, दिस इज खे। इसको काफ मत समझिएगा, बार बार टेबल से रिपीट करें ताकि ये 20 टेबल्स के बाद आपके जहन में इनके इश्काल भी महफूज हो जाएं और इनकी आवाजें महफूज हो जाएं, so that we may serve, so that we may address all the four reading skills, or all the four, sorry, language skills, along with reading and writing and उसके साथ साथ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये तमाम जो है वो कवर हो जाए। खोट, खोट इज कमी। आयशा तारिक साहब, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। Aisha Saib? Yes, sir, quote. Yes, sir, quote. But if this pronunciation can also be written in Romans like Urdu or English, तो it will be easier. जैसे कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अभी तक इस शेप वाले काफ के लिए खे का साउंड खे था है ना, अभी तक मैं सो कोट फार। नहीं कह रहा, खोट और कह रहा हूँ। काफ खोट, खोट नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल दुरुस्त है। दिस इज खोट, नॉट कोट। खोट, दिस इज खोट, ओके, KHOT, खोट। रोमन में होगा KHOT, खोट। ठीक है, जिस तरह से उर्दू में बोलते हैं ना कि हाँ, यार तो मेरे सर वो मेरे दिल में खोट इजी पड़ हो गई, जाएगा। जिस जैसे उर्दू में कहते हैं मेरे दिल में खोट पड़ गई है, राइट, राइट, वही खोट वाली सिंधी में खोट जो है वो कमी को कहते हैं। मिलते जुलते वो दोनों के मफहूम है जी। ठीक है। तो इट इज ओनली अ सजेशन कि अगर वो रोमन में लिख दिया जाएगा तो जब हम पीपीटी से भी रिवाइज करेंगे ये वर्ड्स तो वो क्लैरिटी कन्वे हो जाएगी। आयशा खान साहबा जो है वो बात कर रही थी और उन्होंने कहा, अच्छी सजेशन दी, और आपके सजेशन से ही जो है वो हम जो चीज आपकी नीड में होगी यकीनी तौर पर उसको इम्प्रूव करते रहेंगे। एंड आई होप दैट माय स्लाइड इज विजिबल टू यू, इट इज बीइंग लोडेड, एंड अगर जहां तक इसके ये ताल्लुक है इस बात का कि रोमन में भी उसको क्लियर किया जाए, तो यकीनी तौर पर वो होना बिल्कुल मुमकिन है। और मुमकिन क्या, हम अभी इसको मुमकिन बना देते हैं। होठ का हम जिक्र कर रहे थे जिस तरह से, और कभी कभार सुनाई देने में ऐसा होता है कि सुनाई देने में ऐसे लगता है कि जैसे कोई और चीज है, मतलब सुनने में कभी कभार काफ खे सुनाई देता है, खे काफ सुनाई देता है, तो दिस इज खोट। खोट, कमी, खोट, राइट, दिस इज खोट। जो लिखा हुआ है लफ्ज खोट, यानी कमी, किसी चीज में रिडक्शन, किसी चीज की कमी, उसको खोट कहा जाता है। तो ये जो कमी है, ये है आज का ये जो वर्ड ऑफ द डे। तो दिस शुड बी क्लियर। दो डेढ़ पद पर मुश्तमिल ये हर्फ है। खो इज अ कंप्लीट एक आवाज, पद, सौत। खो यानी सौत या पद उसको कहते हैं जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक पूरी आवाज मुकम्मल करे। खो, ट इज हाफ साउंड, आधा सौत है, नीम सौत है, निस्फ सौत है। खोट, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही लफ्ज है जो उर्दू में हम कहते हैं ना कि तुम्हारे दिल में खोट, मेरे दिल में खोट आ गई है, जो जिक्र किया जाता है कि मेरे दिल में खोट आ गई। वो जो खोट है, उसी खोट को सिंधी में, हालांकि दोनों के मिलते जुलते जो मफहूम है दोनों के मिलते जुलते ही हैं, तो वो खोट जो है वो सिंधी में कमी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मतलब अगर कमी आ जाए तो उसको कहते हैं कि किसी चीज में खोट आ गई। और मैंने फिर बहुत सारी मिसालें आपकी खिदमत में पेश की कि वक्त की कमी को भी खोट कहा जाता है, और इसी तरह से जज्बे की कमी को भी खोट कहा जाता है। एंड दिस इज written in English like this. If you can see, I hope you can see, I'm writing it in Roman. So Roman में इसको इस तरह से लिखा जाएगा, KHOT, right? KHOT, this is quote. हम उसको ऐड कर लेंगे अपनी हर स्लाइड में आइंदा, मतलब जो भी वर्ड ऑफ द डे होगा, ताकि आपके
आपके लिए काबिल फहम हो। कैन यू सी माई स्लाइड एंड कैन यू सी द वर्ड इन द लास्ट? बिल्कुल लास्ट में मैंने लिखा है KHOT, कोट। सो Yes, दिस sir. इज नॉट, हाँ थैंक यू, दिस इज नॉट कोट, दिस इज कोट। Someone was trying to add anything. I was unable to hear. You can repeat whatever you wanted to add. Someone was trying to add something or ask something about this quote which I wrote in Roman. So is there any is there any question about it? Thank you for the. We are unable to see the screen. You're unable to see the screen, or you're unable to see the slide? The screen is not shared. Please share it one more time. I have it. I have shared it, but it shows that now. Can you see this? Now can you see? Now, yes. You can see. Now it is. Yes. Okay, so this is quote. Yes, it is. Can you see the word in the last, in the bottom? Yes, updated. Quote. This is quote. It is written in Roman like this. So this is quote. Quote means kami. Kami means reduction, and that is written in Roman as KHOT. Waqas Sahab, you want to ask anything or add anything? You can unmute yourself and ask. Waqas Sahab. अस्सलाम वालेकुम Walaikum सर। salam. Walaikum salam. Waqas Sahab. ठीक है। Alhamdulillah. ताची क्या हो खरीद साहब? हमारे सर लेट ज्वाइन कर उसी सर स्क्रीन शेयर न की थे में गला थोड़ी स्क्रीन शेयर आने थे उन्हें कर राइज। अच्छा ठीक है। कने कने कजे थो तो उनमें वो मैसेज तो अचे पियो त उहा लोड थी थिए पई त उनमें कने कने थोड़ी देर थी वञे पई कनेक्टिविटी जे करे न त नो प्रॉब्लम मां उनखे शेयर कंदो रहंदो। पर तव्हां दिस इज अ गुड थिंग कि जहां जहां पर शेयर नहीं हो रही स्क्रीन तो आप प्रॉम्प्टली कह रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन आपका व्हाइट बोर्ड है, उस पर आपको समझने के लिए जो है वो जरूरी है कि वो चीजें नजर आए। तो थैंक यू सो मच कि आप बताते रहते हैं कि कहाँ पर रिसीविंग एंड पर कौन सी चीजें नहीं आ रही। बहुत सारी चीजें मेरे लिए विजिबल होती है लेकिन वहां पर रिसीविंग एंड पर नहीं आ रही होती। तो दिस इज दिस क्लियर? quote is kami is reduction, and this is written KHOT in Roman. Now we are coming to जो जुमलो, आज का जुमला, सेंटेंस ऑफ द डे। आज का जुमला, आजकल सर्दियां बहुत ज्यादा है, तो जब सर्दियां बहुत ज्यादा हैं तो हम कहते हैं कि अज डाढ़ो सीउ आहे। अज डाढ़ो सीउ आहे। मैंने इस जुमले को दो अंदाज में लिखा है, और दो अंदाज में लिखने के बाद जो है वो उसको फिर मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन के साथ। यानी ये लफ्ज अगर रिप्लेस हो जाएगा तो दोनों के मायने सेम है। सी हमने पढ़ा था सीजन्स में सियारो कहते हैं मौसम सरमा को। ओवरऑल दी विंटर सीजन इज कॉल्ड सियारो, लेकिन उसमें जो ठंड लगती है, यानी मौसम सरमा में मौसम सरमा नहीं लगता, मौसम सरमा में ठंड लगती है, मौसम सरमा में सर्दी लगती है। तो जो सर्दी लगती है उसको सिंधी में बोला जाता है सी ओ सीन, ये इसके नीचे जेर है और उसके बाद हमजा उस पर पेश, सी ओ। एंड दिस इज अ मुजक्कर, दिस इज अ मेल, दिस इज अ मैस्कुलाइन, सी ओ। इसलिए हम उससे पहले वाले लफ्ज में जब उसकी सिफत बयान करेंगे, एडजेक्टिव बयान करेंगे, तो कहेंगे डाढ़ो। अगर डाढ़ो मीन्स बहुत, ठीक है। अगर डाढ़ो निकाल लेंगे तो ये होगा अज सी आ है, आज सर्दी है। लेकिन आज बहुत ज्यादा सर्दी है तो हम कहेंगे अज डाढ़ो सी आहे। डाढ़ो मीन्स बहुत ज्यादा। सिंधी में डाढ़ो जबरदस्त को भी कहते हैं, यानी जो ताकतवर हो उसको भी कहते हैं। डाढ़ो ताकतवर को भी कहते हैं, लेकिन डाढ़ो यहाँ पर भी ताकतवर के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन तमाम यानी बहुत ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। अज डाढ़ो सी आहे। लेकिन इसी सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं थद के साथ भी, थद जिसको ठंड बोलते हैं। आज बहुत ठंड है, यानी अगर आप ये कहना चाहें कि आज बहुत सर्दी है तो आप कहेंगे आज अज डाढ़ो सी आहे। अगर आप ठंड के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो कहेंगे थद। ये थे है, यानी बे वाली प्लेट पर उसके ऊपर 4 नुक्ते, उस पर जबर, और उसके बाद जैसे
उर्दू में ये दोनों हरूफ जो है उर्दू में मुरक्कब हरूफ कंपाउंड वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल, कंपाउंड लेटर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। थे जो है वो ते और हे के मिलाप के साथ होता है, और ध जो है वो दाल और हे के मिलाप के साथ होता है। तो थद, थद इज मोनस, थद इज फेमिनाइन, थद इज फीमेल। तो वो लिखा जाएगा, यानी उसके लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा वो हो जाएगा दाढ़ी। दाढ़ी इज मोनस, दाढ़ी इज फेमिनाइन, दाढ़ी इज फीमेल। ठीक है, दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर फीमेल। तो अगर हम कहेंगे कि आज बहुत ज्यादा सर्दी है तो कहेंगे अज डाढ़ो सी आहे, या फिर कहेंगे आज बहुत ज्यादा ठंड है तो कहेंगे अज डाढ़ी थद आहे। आज बहुत सर्दी है, इट इज सो कोल्ड टुडे, इट इज टू कोल्ड टुडे। आयशा तारिक साहब, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, sir. My question is that why is there a question mark? And number two, sir, आपने explain करते हुए बताया कि जब दो चश्मी है किसी वर्ड के साथ जुड़ जाती है, जो हम उर्दू में कहते हैं, तो आपने वर्ड यूज किया कंपाउंड लेटर्स। तो जब हम उर्दू ग्रामर पढ़ाते हैं तो उसमें उसको हम कहते हैं भारी अल्फाज। भारी अल्फाज का मतलब होता है जैसे जीन के साथ हे मिल गया, झूला या झोल, तो वो भारी अल्फाज कहलाते हैं। डाल के साथ मिल भारी गया हुरूफ, तो डाल और हे मिला के भारी हुरूफ। भारी भारी। जी जी। हाँ, जी भारी और हुरूफ। इसी तरह वो क्लस्टर बनाते हैं इंग्लिश में। जी हाँ, तो दैट इज आज दादी थर्ड है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सर। हटा देते हैं, हट जाएगा, ये हट गया। और बात और कहें? ठीक है, एज फार एज क्वेश्चन मार्क इज कंसर्न, दैट वाज माय ऑन माय पार्ट, दैट वाज माय मिस्टेक। जहां तक कंपाउंड लेटर्स का ताल्लुक है, बिल्कुल भारी हुरूफ उसको कहा जाता है, भारी हुरूफ कहा जाता है। ठीक है, या सिंधी में उसको हम कहते हैं वजनायता अखर है। ठीक है, वजनायता अखर है, मुरक्कब कंपाउंड लेटर्स, भारी हुरूफ कंपाउंड लेटर्स को ही कहा जाता है। जो मैंने 12 आपको 12 तो खैर वो आवाजें थी जो सिंधी और उर्दू में एक जैसी हैं, लेकिन जो उन 12 में से बेशतर तकरीबन 9 आवाजें ऐसी थी, 9 हरूफ ऐसे थे जो कि कंपाउंड लेटर्स थे, जो कि भारी हरूफ थे, जिसको आप भारी हरूफ कह रहे हैं, जो भारी हरूफ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो कंपाउंड लेटर्स हैं, या क्लस्टर लेटर्स। क्लस्टर का मतलब भी है मेलाप। सिंधी में क्लस्टर के पांच होता है, मुचो, मजमूओ, कंहिं बि शइ जो मजमूओ, ॿ या टे या घणी शयूं जॾहिं पाण में मिलनि त उनखे मजमूओ चइबो आहे। वकास, यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर, क्वेश्चन कोन सर हिकिड़ी त नंढी सजेशन हुई। मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त जेको असां तव्हां पुछा पिया कंदा आहियूं त कोशिशि कयूं त असां इहा बि जेका डिस्कशन आहे उहा सिंधी में कयूं त बेटर इहो आहे त हिन में असांखे वधीक थोरी माना ॻाल्हाइण ॿोलाइण में बोलचाल में वाज़े थी वेंदी सर। सजेशन नोटेड, थैंक यू वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वो आहिस्ता आहिस्ता से, मतलब मैं सिर्फ इसीलिए इसको प्योर सिंधी में इसलिए नहीं रखना चाहता कि अगर कोई चीज फहम में ना आई, समझ में ना आई, तो फिर वो मिस हो जाएगी। तो इसलिए मैं मिक्सचर, मैंने पहले दिन ही आपसे, हमारी टीम ने पूछा था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपके लिए इजी कौन सा होगा, तो इसलिए हम इसको सिंग्लिश। जूम अटेंड कर रहा हूँ एक। सर आप अपने आप को म्यूट कर देंगे तो जलील साहब मेहरबानी होगी, अगर इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ। तो वकास साहब तव्हांजी सजेशन बिल्कुल सही है, पर ॿिन्ही में गॾु इन जो मतिलबु इहो आहे त गॾु हली वठी हलणो आहे सभिनी खे, त जीअं उनकी उहा ॻाल्हि सम्झ में अचे। सो सेंटेंस ऑफ द डे वाज और इज अॼु ॾाढो सीउ आहे। अॼु ॾाढो सीउ आहे, सी इज सर्दी, थधि इज ठंड। अॼु ॾाढो सीउ आहे, आज बहुत सर्दी है। अज डाढ़ी थदा है, आज बहुत ठंड है। डाढ़ी मीन्स बहुत, मोनस के तौर पर इस्तेमाल होता है, दिस इज एन एडजेक्टिव, सिफत है, लेकिन मोनस से पहले डाढ़ी लगेगा, और अगर मुजक्कर होगा तो उससे पहले जो सिफत लगेगी वो मुजक्कर में डाढ़ो लगेगी। अज डाढ़ो सीआ है, आज बहुत सर्दी है। अज डाढ़ी थदा है, आज बहुत ठंड है। राइट जी। I have received a message from my team. मोहम्मद इमरान जकिया साहब ने रिक्वेस्ट की थी शुरू वाले 4 लेक्चर्स भेजने के हवाले से, और उनको वी ट्रांसफर किए थे हमारी टीम ने, लेकिन वो अभी तक उन्होंने डाउनलोड नहीं किए, तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। मोहम्मद इमरान जकिया साहब, इफ यू कैन हेयर मी, वो आपका जो मसला था इंटरनेट वाला, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारी टीम ने आपको पहले वाले 4 लेक्चर्स थ्रू वी ट्रांसफर भेजे थे आपके ईमेल एड्रेस पर, जो अभी तक डाउनलोड नहीं हुए, तो वो अगर आप नहीं करेंगे तो एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा मैसेज था आपके लिए। राइट जी। इससे पहले कि हम 3 मिनट के बाद दूसरा सेशन का हिस्सा स्टार्ट करें, वी वर टॉकिंग अबाउट, मकसूद अली साहब, यू हैव अ क्वेश्चन, आस्क मी।
Immediately ask सर me, क्वेश्चन sir. यही था कि सर आप जी जी, सर असाइनमेंट मेरी सर मंडे वाली आपको रिसीव हुई सर, यही पूछना था सर। सर ये तो मेरे सामने अभी नहीं है, मेरी टीम उसको अपडेट करती है कि किसकी मौसूल हुई किसकी नहीं हुई, मैं पूछ सकता हूँ। मेरे सामने चीज़ें नहीं है, वो जो आई होंगी तो उनकी आपकी एक आप सबकी प्रोफाइल्स बन रही हैं अलग अलग, तो वो उसमें अगर आई होगी तो उसमें चली गई होगी। आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ लिस्ट सही है राइट सर, नाउ। बस सर ये अपडेट कर देना थैंक यू कि मकसूद 2 साहब। पॉइंट्स आपने कहा था कि मिलेंगे जी इस हाँ, पे। थैंक यू। आपने विद इन टाइम जमा करवा दी थी गालिबन, और आपने क्लास में कहा था कि मैंने मेंशन नहीं किया था। आप गालिबन वही केस है? जी जी हाँ अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, सर। थैंक यू। संडे को ही मैं समझ गया, एक्सपीरियंस फॉर्म में गॉट इट भेज मकसूद दी। साइन, गॉट इट मकसूद मिठा, मालूम कराया था, ठीक है। ओके Okay, okay. ओके I'll सर, थैंक encourage, यू। I'll request everybody to जब आप जब डिस्कशन चल रहा होता है तो उसमें एक राहदारियां होती हैं, जहन में भी राहदारियां होती हैं। जैसे ड्राइवर ड्राइव करता है तो राहदारियां होती हैं, हम एक पेस के साथ चल रहे होते हैं। अगर उसी से मुतालिक कोई सवाल आएगा तो बड़ा मजा आएगा। पेस में एक जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी, उस पेस में एक सरगर्मी आएगी। अगर कोई इर्रेलेवेंट चीज आ जाती है, ये तमाम चीजें जो जनरलाइज है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कह रहा कि ये काम की चीजें नहीं है, काम की चीजें हैं, लेकिन आखिर में जो 2 मिनट आपको देता हूँ कि यू हैव अ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस, तो उसमें ये जो टेक्निकल चीजें हैं, या कल की बात या परसों की बात या तरसों की बात या कोई जनरल बात, वो अगर दरमियान में आ जाती है तो वो पेस को डिस्टर्ब करती है, कि ऐसा स्पीड ब्रेकर आ जाता है। अब मैं उसमें लग गया कि पता नहीं जो है वो मेरी टीम भी लग जाएगी और मुझ तक पहुंचाएगी कि मिली नहीं मिली, तो वो जो जो पेस है हमारा, वो पेस डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप मुझसे ज्यादा ज़हीन हैं, मुझसे ज्यादा काबिल हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि पेस कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्राइविंग में, ठीक है ना। तो वो जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, जिस पेस में जा रहे होते हैं, हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, आप ब्रेक अगर लगवा रहे हैं तो उसी से मुतालिक हो, तो फिर हम ज्यादा स्पीड से आगे जाएंगे। जो जनरल क्वेश्चंस हैं, प्लीज होल्ड योर थॉट फॉर दोज क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन द लास्ट। आखिर में हम 3 मिनट 2 मिनट देते हैं। अगर रह भी जाते हैं, जैसे कल किसी ने, आयशा बलोच साहब ने लास्ट क्वेश्चन किया था, तो हमने फिर कनेक्ट किया था, गो के वो कनेक्ट नहीं कर पाई थी, और एंड वी कुड नॉट एड्रेस टू दैट क्वेश्चन। तो डिस्कशन के दौरान डिस्कशन से मुतालिक अगर सवाल होगा तो बड़ी आसानी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा, और बाकी जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए भी अच्छा होगा कि उसी से मुतालिक बात हो रही है, या कोई स्लाइड में कोई चीज काबिल वजाहत है, वजाहत तलब है, तो उसकी वजाहत वहीं पर हो जाएगी, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। So we will be connecting within a few seconds again, and then we will be talking about Sindhi Ayutaji Patti Kak. So we were talking about word of the day and sentence of the day, and now जो कलम और जो शीट हमने आपको कही थी, अब उसके मसरफ का वक्त आ गया है। We were talking about Sindhi हुरूफ तहजी की सौतियाती और तहरीरी जदवलें, the tables of Sindhi alphabet as far as its apparent shapes are concerned and its voices are concerned. Sindhi Ayotaji Patti, जिसको कक भी कहा जाता है। Who will tell me, इन तमाम के अलावा जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनके अलावा आज की क्लास में जो हमारे दोस्त खामोश रहे हैं, उनमें से कोई मुझे बताएगा कि कितनी टेबल्स हैं सिंधी अल्फाबेट की पट्टी में, कितनी पट्टियां हैं, कितनी जदवलें हैं, कितनी टेबल्स हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर करीम बख्श बात कर रहा हूँ सर। जी करीम बख्श साहब। हेलो जी करीम सर, बख्श 20 साहब। पट्टे हैं आपने कहा नहीं, लेकिन जब पहले लेक्चर आप फर्स्ट फर्स्ट कहा था, पहले दिन का लेक्चर था, उसमें कहा था कि 25 पट्टियां होती हैं। 25 बाकी तो पंजराडियूं थोड़ा वज़ाहत कर दें इन सर। न 25 खां अञा बि वधीक आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जीअं अन बन वारी अच्छा ॻाल्हि जे कई त ईअं अल बल बल ईअं त हाणे उन में 50 पटियूं ठही सघनि थियूं, पर हिन वक़्तु हिन मॉड्यूल में असां उहे शामिल करियूं था जेके ठीक सर, इंतहाई ज़रूरी आहिनि, उहे पढ़ाइण ज़रूरी आहे। उन्हनि मंझां 20 असां करे छॾियूं। हूअं त हुन मां 50 बि निकिरी सघनि थियूं, यानी 2 अखरनि जे मिलाप सां ठीक है थैंक यू हम सर। काफ़ी 50 बि थी सघनि थियूं, पर असां ज़रूरी उन्हनि मंझां 20 इनिशियल कढी उहे हुन में शामिल कयो। राइट, मेहरबानी मेहरबानी। वेलकम। अच्छा जी, उनमें से हम कितनी टेबल्स पढ़ चुके हैं? कौन कौन बताएगा मुझे? इनके अलावा जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनके अलावा कोई नई आवाज, कोई नए हमारे लर्नर जो हमें बता सकें कि इस सिंधी आयोटा पट्टी में। आयशा बलोच साहब, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वालेकुम सलाम, हु इज देयर? वालेकुम सलाम, हु इज देयर?
I can hear you. If Shah- you, sorry, please call your name again. जी शाजिया सिराज। शाजिया सिराज साहिबा, क्या फरमाइएगा? सर अब तक हम 3 टेबल पढ़ चुके हैं सर। तीसरी कौन सी पढ़ ली? अलिफ बे का चार्ट। तीसरी सर हमने जबर का। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी हमारी थी अधकरी। अदखरी पट्टी या अदखरी जदवल। राइट जी, थैंक यू, बहुत जी। शुक्रिया रमनाथ साहब, आपका जवाब भी दुरुस्त है। चलें जी, सिंधी आयोटा जी पट्टी, यानी जिसको कक भी कहा जाता है, काफ पर जबर और दूसरे काफ पर जेर, सिंधी हरूफ तहजी की सौतियाती और तहरीरी जदवलें। और कल भी हमने ये चार्ट दिखाया था आपको, ये कंटेंट्स फहरिस्त एक बार फिर मैं रिवाइज करवाता चलूं ताकि जहन नशीन होती चले। ये 20 जदवलें हैं, जिनमें से तीसरी जो है जबर वाला चार्ट, वो यहाँ पर हाईलाइटेड है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टुडे। ओके, अपना कलम खोल लीजिए और अपनी शीट अपने सामने कर लीजिए। और हम जो हरूफ जो है, अब जबर में हमने क्या पढ़ा था, आप सबने जबर का चार्ट पढ़ा था। अब ये एक बार फिर रिवाइज करता चलूं कि इसमें ये कौन सी 20 टेबल्स हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एक तो सिंधी अलफबे का चार्ट जो कि हम पढ़ चुके हैं, तफसील से पढ़ चुके हैं, 2 सेशंस में पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पर है अदखरी जदवल, फिर है जबर का चार्ट, जेर की जदवल, पेश की जदवल, फिर छठे नंबर पर है मद की जदवल, फिर ओ जो चार्ट, ऊ जो चार्ट, ए जो चार्ट, आए जो चार्ट, ए और आए में फर्क है, फिर ई की जदवल, अन की जदवल, इन की जदवल, उन की जदवल, आ ओ ऊ की जदवल, ए आए, ए और आए दोनों फर्क है, ए और आए की जदवल, फिर ई की जदवल। ये 20 जदवलें हम पढ़ेंगे। To make it clarify, to make the voices, the sounds, the sawt and the shapes clarify, right? अब जबर की जदवल के हवाले से हमने पढ़ा था, और ये हमने जदवल पढ़ी थी कि हर हर्फ पर जो है जबर आ गई, ब ब भ त से लेकर न ण व ह य तक। अब आज हम 2 से 3 हरूफ पर मुश्तमिल ऐसे अल्फाज की मश्क करेंगे जिन तमाम पर जबर लगती है। ऐसे वैसे तो हजारों अल्फाज हैं, लेकिन चंद उनमें से हमने निकाले हैं कि जिससे आपको पता चल सके कि हमने ये टेबल क्यों पढ़ी थी। ये टेबल हमने क्यों पढ़ी? ये टेबल हमने इसलिए पढ़ी कि इस किस्म की आवाजें जब कभी आए तो हमें पता चल सके कि वो लिखी कैसी जाएंगी, उनकी लिखने में शक्ल कैसी होगी और पढ़ने में उनकी शक्ल कैसी होगी। तो ये जो आने वाली 22 स्लाइड्स हैं, यूं समझें कि ये तमाम के तमाम वर्ड्स ऑफ द डे हैं आपके लिए। ठीक है, आपने अपना कलम कागज निकाल लिया। इस कागज पर जो हम मश्क करेंगे अभी, उसका आप उसकी तस्वीर खींचेंगे, उस पर अपना नाम तहरीर करेंगे। अभी बल्कि नाम ऊपर तहरीर कर लें, आप अपना नाम तहरीर कर लें, अपने शहर और मुल्क का नाम तहरीर करें। राइट योर नेम एज पर CNIC, वो नाम के जिस नाम से आपका सर्टिफिकेट होगा, आपकी सनद होगी, राइट? तो वो आप नाम तहरीर करें, कंप्लीट नेम, देन राइट योर सिटी एंड कंट्री बिलो दैट नेम, और उसके बाद एक लकीर लगाकर नीचे मश्क करना शुरू करें। पहले कहा जाता था कि इसको लिखना पढ़ना आता है, फिर अब ट्रेंड हो गया इसको पढ़ना लिखना आता है। लिखने पढ़ने और पढ़ने लिखने में क्या फर्क है, ये कल मैं आपसे पूछूंगा। धूमधाम और धाम धूम में क्या फर्क है? हमने सालगिरह धाम धूम से मनाई, हमने जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया। लिखने पढ़ने में ही लिखेल पढ़ेला, ये पढ़ल लिखेला, इन दोनों में क्या फर्क है? कल आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं सबसे पहले क्लास में पूछूंगा। पढ़े लिखे होने में और लिखे पढ़े होने में क्या फर्क है, और दोनों में से ज्यादा मुफीद कौन सा है, फायदेत वाला कौन सा है, राइट? तो फिलहाल हमने पढ़ तो लिया, अब लिखने की मशक करते हैं। चाहे रफ लिखें आप, उस पर एक हर्फ के, एक लफ्ज के साथ अगर 2-3 और अल्फाज आपको ऐसे जहन में आते हैं जिन सब पर जबर है, तो आपको लिखते जाएं, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हम इस मशक का आगाज कर रहे हैं प्रैक्टिकली आज पहली मरतबा, राइट जी? तो ये जबर का चार्ट हमने पढ़ लिया। अब कुछ ऐसे अल्फाज हम लिखेंगे जिन अल्फाज के तमाम हरूफ पर जबर लगती है। ठीक है, तो ये इसलिए भी तैयार हो जाएं कि लिखने के लिए भी तैयार हो जाएं, और नए अल्फाज जानने के लिए भी तैयार हो जाएं कि वो नए अल्फाज कौन से हैं जो वर्ड्स ऑफ द डे के तौर पर हम पढ़ेंगे। तो ये है जबर जी जदवल, जबर जी जदवल यानी चार्ट जी मश्क, जबर की जदवल की मश्क। दिस इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स the thing, the practice which you do by yourself to understand। जिस तरह से आप अपने क्लास में जो असातिज़ा हैं
अपने बच्चों से मशक करवाते होंगे, राइट जी। तो सबसे पहले हम आते हैं, जब हम बात करते हैं, I hope my screen will be shared with you and you can see your screen share is loading. लोडिंग के बाद अब आपको ये स्क्रीन मेरी नजर आ रही है, ठीक है जी। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, सबसे पहला सबसे पहला लफ्ज, अब मैं अल्फाज यहां पर तहरीर करता जाऊंगा और आप मेरे साथ साथ तहरीर करते जाएंगे, राइट जी। नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है, नीचे मैंने उर्दू में एक लफ्ज लिखा है। अब उसको सिंधी में क्या कहते हैं? यकीनन इस मश्क में हम वो अल्फाज तहरीर करेंगे या उनकी प्रैक्टिस करेंगे जिन तमाम पर जबर की आवाज लगती है, जबर का सुर लगता है। अब घर उर्दू में, नीचे वाला उर्दू में लिखा हुआ है, जो जमा के साथ लिखा हुआ है ये उर्दू में, उसके नीचे इंग्लिश में है, दरमियान में मैं सिंधी में लिखने वाला हूं। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। थैंक यू वकास फॉर इंडोर्सिंग। तो घर को सिंधी में क्या बोलते हैं जब जमा में लिखा जाता है? अगर सिंधी में घर, अगर मैं सिंगुलर में लिखूंगा तो लिखूंगा घर, ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जबर वाली जदवल की मशक कर रहे हैं, तो जमा में ये हो जाएगा घर, राइट, घर। आप भी नोट करें अपनी शीट में, अपने नाम के बाद जो आपने लाइन लगाई उसके बाद आप नीचे नोट करें। घर को हाउसेस in plural will be written and pronounced in Sindhi as ghar. This is ghe, this is one letter, और this is ra, ghar, घे पर भी जबर, रे पर भी जबर। माइंड इट, इस मश्क में हम तमाम ऐसे अल्फाज पढ़ेंगे जिनमें दोनों या तीनों हरूफ पर जबर लगेगी। तो घर को जमा में जब लिखा जाएगा सिंधी में तो उसको कहा जाएगा घर, यानी घर को घर ही कहा जाता है, लेकिन सिंधी में घर कहा जाएगा। अगेन वही रूल कि सिंधी का हुस्न है कि उसके आखिरी हर्फ पर कोई ना कोई हरकत आएगी, या जेर या जबर या पेश, सिवाय उन अल्फाज के जो हरूफ इल्लत पर खत्म होते हैं। ये पहले दिन से रूल जो है रिपीट होता जा रहा था कि मैं दूसरे तीसरे दिन से। तो पहला इस मश्क का लफ्ज है घर, यानी बहुत सारे घर, एक से ज्यादा घर, बहुत सारे घर, ठीक है। हाउसेस, घर, जमा में लिखा जाएगा घर। फिर पत्ते यानी लीव्स को सिंधी में कहते हैं, एक पत्ते को कहते हैं पन्नु, ठीक है। मैं ये सिर्फ वजाहत के लिए पेश लगा रहा हूं, वैसे हमें जबर की मशक करनी है। एक पत्ते को कहते हैं पन्नु, राइट, पन्नु। और अगर ज्यादा पत्ते हों, पत्ते यानी लीव्स जो दरख्तों पे लगते हैं, ज्यादा पत्तों के लिए लिखते हैं पन्ना, ठीक है। यू कैन राइट इट डाउन, बल्कि यू मस्ट राइट इट डाउन। पहला हमने पढ़ा था घर, यानी बहुत सारे घर, दो या दो से ज्यादा घर। फिर हम पढ़ रहे हैं पत्ते, लीव्स, दैट इज पन्ना, लीव्स, पन्ना, पत्ते, राइट, अंडरस्टैंड। घर ये हमने पढ़ा घर, उसके बाद ये हमने पढ़ा पन्ना। उसके बाद अगला लफ्ज जो मश्क में आता है ये कान, ये आपके कान, parts of your body, the organ through which you can listen to, यह है कान। अब कान को जमा में क्या कहेंगे? अगर कान को हम वाहिद में लिखेंगे तो हम कहेंगे कन्न, यानी ईयर इज कॉल्ड कन्न, सॉरी, कन्न, इस तरह से ईयर, एक कान कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, एक कन्न खा दो, बेकन्न कड़ी चलो। लेकिन जमा की सूरत में हम लिखेंगे कन्न। इस मश्क में हम तमाम, मैं तीसरी चौथी बार रिपीट करूं, तमाम ऐसे अल्फाज की मश्क कर रहे हैं जिन पर अगर वो 2 हरूफ पर है, 3 हरूफ पर है, तमाम पर जबर की हरकत है, उन्हीं को हम सीख रहे हैं, क्योंकि मश्क जो है वो जबर वाली टेबल की है। तो कन्न मीन्स 2 या 2 से ज्यादा कान, दीवारों के भी कान होते हैं, भितिन जा भी कन्न थींदा है, कन्न कान, ठीक है। कन्न, कान जमा में ईयर्स के तौर पर ऐसे लिखा जाएगा, काफ पर भी जबर, नून पर भी जबर। तो हमने पढ़ा घर है, रिपीट भी करता जा रहा हूं ताकि रिमाइंड होता चले, और आई होप यू आर राइटिंग दीज। पन्ना यानी पत्ते, कन्न यानी कान, एक या एक से ज्यादा कान। फिर जख्म की अगर हम बात करेंगे, जो जख्म लगता है उस जख्म को जमा की सूरत में हम क्या कहेंगे? अच्छा, पहले हम वाहिद में लिख लें। प्योर सिंधी लफ्ज जो जख्म के लिए है
Can anybody tell me from those who have Sindhi their mother tongue? जख्म की सिंधी में छा चलो जखम आगे सिंधी में छा चलो सर पट ना सर पट ना ये अदड़ी कंहिंखां पोइ पुछे मूंखां पोइ पुछे या पंहिंजे पाड़े वारे खां पोइ पुछे ये अदड़ी पंहिंजो नालो ॿुधायो मैम तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो मैम तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो टाइम पियो वञे मैम तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो जे इफ यू कैन नॉट लिसन टू मी मक़सूद साहब ॿुधायो फट कंहिं ॿुधायो मक़सूद साहब तव्हां ॿुधायो कंहिं ॿुधायो सर मां ॿुधायो सर पट हाँ मां माना मक़सूद साहब ना आई वांट टू कंफर्म योर नेम इज मक़सूद साहब दिस इज माय गेस प्लीज कंफर्म इट or anybody else is talking to me सर वकास अच्छा वकास अली साहब ॿुधायो फट तव्हांजो आवाज़ मूं ताईं ठीक सां नथो पहुचे करीम बख्श साहब तव्हां छा पिया ऐड करणु चाहियो तव्हां ॿुधायो There's an interruption in I either from your side or from my side. Thank you very much. I'll request all of you to mute yourself. जख्म को सिंधी में कहते हैं फट. Okay sir. Please everybody is requested to please mute. जख्म को सिंधी में कहते हैं प्योर सिंधी लफ्ज जो है ये वकास साहब थे या मकसूद साहब थे आई डोंट नो आई वांटेड टू कंफर्म लेकिन वो उनकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच सकी या मेरी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच सकी जख्म को सिंधी में फट्टू कहते हैं ये फे वही है फूल वाली फे जिस तरह से वो भाई हर्फ या कंपाउंड वर्ड जो है कंपाउंड लेटर पे और हे फूल वाली फे जो है वो इस तरह सिंधी में लिखी जाती है उस पर जबर आएगी तो ये फ हो जाएगा और ये टे जिसको तुर्रे के साथ उर्दू में लिखा जाता है सिंधी में 3 नुक्तों के साथ लिखा जाता है तो ये फट्टू यानी सिंगुलर में हम जिक्र करेंगे तो फट्टू यानी एक जख्म ठीक है और उसी को जमा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा फट्ट यानी बहुत सारे जख्म 2 या 2 से ज्यादा जख्म 2 हो या 2 लाख हो वो फट्ट हो जाएगा ठीक है फट्ट मीन्स वुंड्स जख्म बहुत सारे जख्म उसको फट्टे कहा जाएगा एक जिस्म पर खुदा न खास्ता किसी हादसे में बहुत सारे जख्म लग जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसके हिन जे जिस्म ते खोड़ सारा फट्टा है अगर एक जख्म होगा तो कहेंगे हुन जे जिस्म ते फट्ट आहे जो मैंने पहले लिखा था तो फट्ट कहते हैं जख्म को जमा में वुंड्स कहा जाता है तो पहला लफ्ज था घर फिर पन्ना घर मीन्स घर बहुत सारे पन्ना मीन्स पत्ते कन्ना मीन्स कान 2 या 2 से ज्यादा फट्ट मीन्स जख्म ठीक है उसके बाद है हाथ हाथ जमा में एक हाथ नहीं एक हाथ होगा तो हम कहेंगे ये पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम आगे जाके सीखेंगे अगर एक हाथ होगा तो हम लिखेंगे हथ ठीक है हे पर जबर है हे पर जबर है और थे पर पेश है हथ अगर ज्यादा हाथ होंगे 2 या 2 से ज्यादा तो ये ऐसे हो जाएगा हथ ठीक है जबर वाली टेबल की मशक हो रही है यानी तमाम ऐसे अल्फाज हम लिख रहे हैं कि जिनमें तमाम हरूफ पर जबर है हथ मीन्स हाथ जमा की सूरत में हाथ हैंड्स 2 हो या 2 लाख हो या 2000 हो या 20,000 हो तो हथ मीन्स हाथ बहुत सारे हाथ तो हमने शुरू किया घर से घर यानी बहुत सारे घर 2 या 2 से ज्यादा घर पन्ना मीन्स लीव्स पत्ते पन्ना फिर कन्ना मीन्स कान ज्यादा जमा में 2 या 2 से ज्यादा कान ईयर्स फिर है जख्म 2 या 2 से ज्यादा जख्म फट्ट फिर है हाथ यानी ज्यादा हाथ उसको कहा जाता है हथ फिर चारपाई को कोई ऐसे मेरे दोस्त के जिनकी मादरी जुबान सिंधी नहीं है बताएंगे हमने अल्फाबेट में पढ़ा था चारपाई के लिए एक लफ्ज वो कौन सा लफ्ज था कैन एनीबडी टेल मी प्रॉम्प्टली जलील अर्ज कर रहा हूँ शायद जी जलील साहब खट्ट जी तो खट्ट लिखा जाता है ऐसे खे टे ठीक है खट्ट वाहिद को खट्ट कहा जाता है फिर जमा में वो खट्टू हो जाएगा वो एक और लफ्ज हो जाएगा फिलहाल हम जबर वाली उसकी मशक कर रहे हैं तो खट्ट इज मोनस ठीक है खट्ट इज चारपाई खट्ट इज चारपाई 4 पांव वाली 4 पैरों वाली चारपाई उसको कहा जाता है खट्ट दोनों हरूफ पर जबर है तो हत्ता के बाद आया खट्ट मीन्स चारपाई उसके बाद है पहाड़ के लिए एक ऐसा लफ्ज जो अरबी का लफ्ज है उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लेकिन कम
वैसे अरबी का लफ्ज है। और आप अरबिस्तान के जबलों को देखेंगे, दुबई के जबलों को देखेंगे, जबल अली, जबल नूर, तो जबल लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो है अरबी का लफ्ज, लेकिन सिंधी में भी मुस्तामिल है और सिंधी में भी उसको जबल कहते हैं। तो अगर सिंगल होगा, अच्छा इसमें जे पर भी जबर, बे पर भी जबर, सिंगल होगा तो होगा जबल, यानी एक जबल, ठीक है। ज्यादा होंगे तो होगा जबल। पहाड़ जमा में होगा जबल। जबल आपके लिए भी बर पहाड़ और बर बयाबान और जबल आपके लिए भी, यानी उर्दू बोलने वालों के लिए भी नया लफ्ज नहीं होगा जबल। तो उसको जमा में हम जबल कहते हैं, तीनों हुरूफ पर जबर। पहाड़, माउंटेन्स आर कॉल्ड इन सिंधी जबल। हाथ की जमा हत्थ, चारपाई को खट्ट, और पहाड़ की जमा को जबल कहा जाता है। फिर मटके, मटके जिसमें पानी भरा जाता है, मटका एक मटका है, लेकिन जमा में मटके का अंडरस्टूड है कि वो जमा में हम बात कर रहे हैं। तो सिंधी में अगर सिंगुलर होगा तो उसको कहेंगे मट, यानी उससे मिलता जुलता ही है। मटको भी कहते हैं सिंधी में ऐसे मटको भी कहा जाता है। लेकिन वो आपने मटके वाली कुल्फी सुनी होगी या मटके वाली रबड़ी सुनी होगी, लेकिन उसको मट्टू कहा जाता है, उमूमन मट्टू कहा जाता है। और जमा में हो तो मट्ट, यानी एक से ज्यादा मटके। मटकों को जिसमें पानी भरा जाता है उसको एक को कहा जाता है मट्ट, और ज्यादा को एक को कहा जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया मट्ट, यानी पेश आएगा। और फिर अगर जमा है तो फिर वो मट्ट हो जाएगा, मट्ट। वैसे मट्ट के साथ और भी अल्फाज हैं, मट्ट सट्ट मीन्स रद्दो बदल, लेकिन फिल वक्त हम मटके की बात कर रहे हैं। तो मटके जमा में होगा मट्ट। पहाड़ को की जमा को जबल और मटके की जमा को मट्ट, ठीक है, क्लियर। अच्छा, हैंडल्स, जिस चीज को हाथ से पकड़ के, जैसे जग का हैंडल होता है, जैसे मग का हैंडल होता है, उसको सिंधी में प्योर जो लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है, कहिड़ो इस्तेमाल थींदो आहे? हैंडल लाइ केरु ॿुधाईंदो? हु इज देयर टू टेल मी? सिंधीअ में हैंडल खे पाण छा चवंदासीं? कंहिं शइ खे कंहिं शइ खां पकड़े, कंहिं शइ खे जेकॾहिं कंहिं हैंडल खां पकड़े ऐं खणिजे त हुन हैंडल खे सिंधीअ में छा चइबो आहे? कैन एनीबडी टेल मी? सर पकड़, सर पहिरीं नालो पकड़ ॿुधायो। सर। सर इहो अंडरस्टूड हुजे, जेको अचे पहिरीं नालो ॿुधाए, पहिरीं नालो ॿुधाए पोइ जवाबु ॾे। सर फजीला। जी फजीला, छा चइबो आहे हुनखे? सर फजीला। फजीला छा चइबो आहे हैंडल खे? सर गन। गन चइबो आहे, ठीकु आहे। मुंहिंजे ख़्याल में वकास साहब है। वकास साहब तव्हां ॿुधायो। वकास साहब हुयो मुंहिंजे ख़्याल सर में। पकड़ में भी जी जी, तव्हां ॻाल्हाईंदा रहो। तव्हां वकास साहब ॻाल्हाईंदा रहो, हिन सां टाइम बचंदो पंहिंजो। तव्हां छा पिया चओ? सर पकड़ चवंदा आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां, पकड़, वकास अली पकड़ सर। जी, वकास अली पकड़। अच्छा जी जी, कौन थे? दूसरी आवाज किनकी थी? सर काइंडली अगर इमरान जकरिया सर। इमरान जकरिया साहब जल्दी से बताएं कौन सा लफ्ज आप कह रहे हैं? दस्ती सर, दस्ती या लास्ता बोलते हैं। ओके, दस्ती, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। असांजी अदड़ीअ ॿुधायो फज़ीला, इनखे चइबो आहे गन, ठीक है। गन यानी हैंडल, किसी भी चीज को जिसको पकड़ना जरूरी हो, जैसे मग है, जिस तरह से जग है, या इवन आप बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे सीडी की रीलिंग होती है तो वो भी उसका हैंडल है। यानी हर चीज को हैंडल करने के लिए उसमें ग्रिप जो होती है उसकी, उसको सिंधी में कहते हैं गन। गे पर जबर, ये ग अगेन आ गया, जिसका हमने पहले ग का जिक्र किया था, दिस इज ग। गे पर जबर, नून पर पेश, लेकिन ये अगर जमा हो जाएगा तो ये हो जाएगा गन, क्योंकि हैंडल्स जमा का हम जिक्र करें, नीचे लिखा हुआ है हैंडल्स जमा, हैंडल्स। तो सिंगुलर को कहेंगे गन यानी हैंडल, या दस्ता, जैसे उन्होंने कहा दस्त का मतलब है हाथ, जिसमें हाथ से जिसको पकड़ा जाए, दस्त, ठीक है। दस्त कहते हैं हाथ को। जेर दस्त यानी जो आपके हाथ के नीचे काम करे। जबरदस्त यानी जो आपका जो आपको सुपरसीड करे, जो आपके ऊपर काम करे, जो आपका बॉस हो, उसको कहते हैं जबरदस्त। जेर दस्त कहते हैं जो आपके नीचे काम करे, आप इसके बॉस हो। तो जेर दस्त और जबरदस्त यानी हाथ के नीचे काम करने वाला, हाथ के ऊपर काम करना, दस्त हाथ को कहते हैं।
दस्तखत यानी हाथ से लिखे हुए खत, हाथ से लिखे हुए हरूफ, उसको कहते हैं दस्तखत। तो दस्ता भी सही है, लेकिन सिंधी में उसको कहते हैं गन्न, और जमा की सूरत में गन्ना। तो सिंस वी आर रिवाइजिंग द जबर टेबल, तो इसमें ऐसे हरूफ का जिक्र है कि जिसमें तमाम पर जबर लगेगी। तो यह है गन्न यानी हैंडल्स, एक से ज्यादा हैंडल्स। हमने पढ़ा मटके को मट्ट, यानी ज्यादा मटके हो तो हम पढ़ेंगे मट्ट और लिखेंगे मट्ट, और हैंडल को हम कहेंगे गन्ना। आर यू राइटिंग ऑल दिस ऑन योर शीट? आई होप दैट यू आर राइटिंग ऑन योर शीट। गन्ना, राइट, गन्ना। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज है हल, जो जमीन में हल चलाया जाता है। जमीन में जो हल चलाया जाता है, जिससे जमीन आबाद होती है, जिससे काश्तकारी होती है, जिससे जमीन से अनाज फूटता है, उसको सिंधी में कहते हैं, उसी से मिलता जुलता लफ्ज, उसको सिंधी में कहते हैं हर। ठीक है, उसको सिंधी में कहते हैं हे पर जबर, रे पर पेश। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। I'll ask you to unmute whenever you would have a question or I will invite a question. ठीक है, हर सिंधी में कहा जाता है हर, और उसको हल चलाने वाले को हम कहते हैं हारी, मीन्स हल चलाने वाला, फाइल उसका हल चलाने वाला, हर हलाने वाले के हारी चेव। ठीक है, हर तो थी सिंगल, यानी वाहिद में हम कहेंगे हर, और अगर ज्यादा हल होंगे, क्योंकि नीचे हल जमा लिखा हुआ है, तो उसको कहेंगे हर, राइट, हर। हर हारी जो चलाता है, जो काश्तकार चलाता है, वो हल चलाता है। तो हर होगा वाहिद में, हर यानी एक हल, ज्यादा हल होंगे दो या दो से ज्यादा, तो ये हो जाएगा हर। हर मीन्स हल, वो हल के जो जमीन में चलाया जाता है जमा में, एक से ज्यादा। तो गन्न हो गया हैंडल्स, मट्ट हो गया मटके, हर हो गया हल, ज्यादा हल। उसके बाद है रख्ते सफर, बोरिया बिस्तर, लगेज या बैगेज। बैगेज कहते हैं कि जो आप सफर के दौरान अपने साथ जो उठाते हैं, उसको जो है वो बैगेज कहा जाता है। तो उसको सिंधी में, उसके लिए प्योर सिंधी लफ्ज केरु ॿुधाईंदो? जेको ये बोरियो बिस्तर हूंदो आहे, या रख्ते सफ़र हूंदो आहे, या सामान हूंदो आहे, उनखे सिंधीअ में छा चइबो आहे? उनखे सिंधीअ में कहिड़ो लफ़्ज़ चइबो आहे? ॿ टे लफ़्ज़ आहिनि, कोई ॿुधाईंदो त करीम बख्श सर बात कर रहा हूँ। जी करीम बख्श साहब। करीम बख्श बात कर रहा हूँ सर। जी करीम बख्श साहब। सर हड़ कहते हैं, हड़ हड़ हड़। हाँ, हड़, ठीक है, हड़, हड़। ॿियो छा चइबो आहे उनखे? एनी अदर, एनीबडी एल्स? ॿियो छा चइबो आहे उनखे? ॿियो छा चइबो आहे उनखे? कैन एनीबडी टेल मी कि उनखे ॿियो छा चइबो आहे सिंधीअ में? उनखे ॿियो छा चइबो आहे? अच्छा जी, कोई कोन्हे? सर वकास अली सर। जी वकास अली साहब, छा चइबो आहे उनखे? सर मे बी टपड़ चइबो आहे। न, उहो हुनखे माना असां हुनजी ॻाल्हि था कयूं। जीअं हड़ साईं चयो न, त उन लाइ टे लफ़्ज़ आहिनि। मां तव्हांखे टई लफ़्ज़ ॿुधायां थो, पर मां उन आख़िरी लफ़्ज़ जेको हिन हुन में शामिल कंदासूं, उहो हिकिड़ो टियों लफ़्ज़ आहे। हाणे साईं चयो हड़, हड़, ठीक है, हड़ भी कहा जाता है सिंधी में, उसको हड़ भी कहा जाता है। जो आपके पास सामान हो, रफ्ते सफर हो, जो लगेज हो, जो बैगेज हो, उसको हड़ भी कहा जाता है। ठीक है, उसको हड़ भी कहा जाता है। इसके लिए एक और लफ्ज जो कि नॉर्दर्न सिंध में इस्तेमाल होता है, उत्तर सिंध में इस्तेमाल थींदो आहे, वो है बड्ड। एक और लफ्ज होता है बे पर भी जबर, डाल पर भी जबर, हड़, बड्ड। एक हड़ इस्तेमाल होता है, एक बड्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, बे पर भी जबर और डाल पर भी जबर, बड्ड, इस तरह से लिखा जाता है, बड्ड। लेकिन हम जो इस स्लाइड में आपको सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि तमाम अल्फाज आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो खैर हड़ भी जो है वो जबर वाला है, आप उसमें मश्क में नोट कर सकते हैं। हड़ आपने नोट किया, हड़ मैंने आपको ऐसे बताया कि हे पर भी जबर और डे पर भी जबर, ये डे है, सिंधी में डे ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, हड़, दिस इज हड़। फिर मैंने आपको बताया बड्ड, ये आप दोनों नोट कर सकते हैं। लेकिन जो स्लाइड में हम फाइनल लिखने जा रहे हैं वो है लड्ड, लड्ड। ठीक है, लड्ड, लड्ड, लाडाऊ, लड्ड भी दे लडानी भी दे। सिंधी में एक मुहावरा है, लड्ड भी दे लडानी भी दे, यानी मैं तुम्हें बैगेज भी दूं और उसको उठाने के चार्जेस भी दूं, उसको उठाने का किराया भी दूं। यानी ये तब कहा जाता है जब हर चीज का बोझ किसी एक पर डाल दें, और उससे किसी एक चीज के लिए सवाल करें, यार मुझे जो है वो फर्ज करें कोई आप कोई चीज मांग रहे हैं कि यार मुझे अपना
डिनर सेट दे दो, हाँ यार ले जाओ। तो यार वो अपने उसको सर्वेंट को कहना या अपने अपने खिदमतगार को कहना कि वो मेरे घर तक पहुंचा दे। तो ऐसे मौके पर कहते हैं लड्डा भी दे लडाड़ी भी दे, मीन्स लगेज भी दूं, बैगेज भी दूं, और उसको उठाने के लिए मजदूर मजदूर भी दूं। यानी दोनों ये सजाएं मेरे लिए क्यों है, ये तंजिया तौर पर कहा जाता है। तो वो लफ्ज है लड, ठीक है, लड। सर जी यहाँ सर। मैं ना पंजाबी पंजाबी का, सॉरी जलील नाम है, मैं जी जी सर। ऐड करना चाहूंगा। पंजाबी में सर कहते हैं हौला लद सवेले आ। पंजाबी में भी लद यूज होता है, हाँ हौला लद, लद यानी लादना हल्का उर्दू में भी है, सामान। लादना। जी सर। फिर जी सर। जब लाद चलेगा बंजारे, लादना, वो सिंधी उर्दू में जी भी कहते हैं लादना। तो ये तो उसको हाँ और कूच करने को लडण कहते हैं सिंधी में। कूच करने को लडण का मतलब यह है कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर जो चला गया, इंशादी उठो अब कूच करो, यानी हिजरत करने को, कूच करने को जो है वो लडण कहते हैं। उसके साथ यानी आखिर में नून लग जाता है ऐसे। तो लड हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। थैंक यू फॉर एडिंग जलील साहब के। जैसे मैंने कहा कि पंजाबी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही जो है वो जुबान है, यानी सिंधी के वतन से ही निकली है। तो जाहिर है कि बहुत सारे अल्फाज, पहले ही दिन मैंने आपको बताया था कि जैसे हम भेड़ कहते हैं सिस्टर को, और पंजाबी में पैंड कहा जाता है, ठीक है। हम भा कहते हैं भाई को, तो वहां पर पाजी कहा जाता है। और हम मुंडरी कहते हैं अंगूठी को, तो पंजाबी में मुंदरी कहा जाता है। तो ये तमाम जुबानें, जैसे पोटोहारी है, जैसे हिंदको है, ये तमाम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही वतन से निकली हैं और दरिया सिंध के किनारों पर बोली जाने वाली जुबानें। पहले दिन जो मैंने तारीखी पस मंजर बयान किया था, आई होप कि आपके जहन में होगा। तो लड्ड बोरिया बिस्तर को कहते हैं, रख्ते सफर को कहते हैं। मैंने दो अल्फाज और भी, बड्ड भी आपको बताया, और हड़ जो करीम साहब ने बताया वो भी मैंने आपको बताया। तो ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। आई होप यू ऑल आर राइटिंग ऑन योर शीट, राइट? यू आर प्रैक्टिसिंग इट, हाउ टू राइट इट। लिखने पढ़ने और पढ़ने लिखने वाली बात जो की थी, सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाना आपको, बोलना नहीं सिखाना, लिखना भी सिखाना है। चारों स्किल्स आपको सिखानी है। और ये हो सकता है कि आपके लिए ये मराहिल मुश्किल हो, जब वंस आप पार हो जाएंगे तो आप कहेंगे, आपको पता चलेगा कि आप ये 3 महीने पहले कहाँ पर थे सिंधी सीखने के वाले से, बाद में कहाँ पर। तो ये तमाम मराहिल, आई होप दीज विल हेल्प यू इन लर्निंग दिस ऑल, राइट? तो हल जमा में हर कहलाता है, हैंडल जमा में गन कहलाता है, और बैगेज जमा में लड कहलाता है। फिर खड्डा, ठीक है, खड्डा, कोई भी खड्डा हो उसको सिंधी में कहते हैं, उसी से मिलता जुलता, खड्ड, ठीक है, उसको सिंधी में बोलते हैं खड्ड। कोई भी खड्डा हो तो उसको सिंधी में बोलते हैं खड्ड। खे पर भी जबर है और डाल पर भी जबर है। ये डे है या डाल है, जिससे डेडर लिखा जाता है, डाल डेडर हमने पढ़ा था। तो ये खड्ड, खे पर भी जबर, डाल पर या डे पर भी जबर, खड्ड, खड्डे को कहा जाता है। उर्दू में क्योंकि डाल नहीं है, होता तो शायद खड्डा कहा जाता है इसको, तो इसको खड्डा बोला जाता है। कराची में खड्डा मार्केट जो आपने सुनी होगी, वो इसी वजह से ही है कि वो समंदर के किनारे पर, वहां पर जब पानी जमा हो जाता था तो वहां पर खड्डा बन जाता था। तो वो खड्डे वाला जो इलाका है, वो जो नीचे वाला इलाका है, वहां पर अब मार्केट बन गया, वो खड्डा मार्केट बन गया। खडे वारो मदरसो, मौलाना मोहम्मद सादिक वारो जो मदरसो आहे, खडे वारो मदरसो, जेको खारेदर में आहे, मशहूर आहे। तो उहे इन खॾ जे करे आहे, छाकाणि समुंड जे किनारे ते हिकिड़ी खॾ हूंदी हुई, उहा भरे जेको इलाइक़ो ठहियो, तो उहो इलाइक़ो अॼु बि लियारी में खॾे वारो इलाइक़ो चवंदा आहे। कराची में एक डिफेंस में मार्केट है खड्डा मार्केट, और एक लियारी में इलाका है खड्डा, जहाँ पर खड्डे वाला मदरसो मशहूर है। खड्डे वाले मदरसा मशहूर है। मौलाना मोहम्मद सादिक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, तो उनका खड्डे वाला मदरसा मशहूर है। तो खड्ड जो है वो खड्डे को कहा जाता है। फिर पर, बालों पर, किसी पंछी के, किसी परिंदे के जो पर हैं, जो उसको उड़ने में इस्तेमाल होते हैं, उन परों को, उन विंग्स को सिंधी में पर ही कहते हैं, लेकिन जमा में जब हम लिखते हैं तो पर लिखते हैं। अगर हम वाहिद का जिक्र करेंगे, वाहिद में लिखेंगे, तो पर कहेंगे, एक पर, ठीक है, शह पर या बालों पर जिसको कहा जाता है। तो अगर वाहिद में लिखेंगे तो पर, और जमा में लिखेंगे तो पर, ठीक है, पर के साथ और भी अल्फाज हैं, जैसे मगर को भी सिंधी में पर कहा जाता है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, पर उर्दू में भी पर कहा जाता है, पर तुम बात मेरी नहीं मानते, ठीक है। तो पर सिंधी में पर कहा जाता है, लेकिन आखिर में जो है वो उसके हरकत लगती है। ये उसूल देखें, पहले दिन से लेकर अभी तक आप हर लफ्ज पर देखते होंगे कि आखिरी हर्फ पर हरकत जरूर है, अगर वो वॉवेल नहीं है तो। पर, ठीक है, पर, खड्ड, पर। तो खड्ड कहा गया खड्डे को, लड्ड कहा गया लगेज को या बैगेज को, पर कहा गया विंग्स को या परों को, ठीक है। परों को, पर की जमा जो है
वो पर कहलाती है। फिर आते हैं हम जिक्र, डिस्कशन। जिक्र के सिंधी में छा चइबो आहे? मूं फलाणे जो ॾाढो जिक्र कयो, कल्ह तव्हांजो ॾाढो जिक्र निकितो। सिंधी में प्योर सिंधी वर्ड, एनीबडी? कैन एनीबडी टेल मी? Can anybody tell me? Hurry up, quick. I don't have time. Rather, you don't have time. Can anybody tell me? If you are unmuting yourself, call your name and just throw the answer. Anybody? अगर नहीं है तो सर्वकाश अली कचहरी। सर्वकाश अली छा चइबो? कचहरी सर। कचहरी गपशप को कहते हैं। गाल सॉरी बोल कचहरी नहीं, गाल बोल इज अलग थिंग। हम कहते हैं हमने कल आपका जिक्र किया था, हमने कल आपका जिक्र किया था। सार लहण सर। सार इज याद, सार इज याद। सॉरी वकास साहब, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। बट साईं रिजवान खान जी, रिजवान खान साहब। इजहार सही। Izhar is expression. I want to know the typical word for discussion. कल तहां जो जिक्र निकतो उनके सिंधी में चइबो। Please mute yourself. Thank you very much. The particular word for zikr, please mute yourself, sir. I will have to find that who is unmuted. Then this is a please mute yourself. Right. तो सिंधी में उसको कहते हैं भाई कल आपका बड़ा जिक्र निकला, कल आपका बड़ा जिक्र निकला। उसको सिंधी में अगर कहेंगे तो वो कहेंगे हम पच्चर, ठीक है, या पचार, ठीक है। पिरंजी पचार आपने सुना होगा। पचार यानी जिक्र, यानी डिस्कशन। पे चे रे, तीनों पर जबर। पे चे रे, पचर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पचार भी लिखा जाता है ऐसे, लेकिन सॉरी ऐसे, लेकिन हम आज चूंकि जबर वाली टेबल की मशक कर रहे हैं तो इसमें ये अलिफ दरमियान में आ जाएगा, तो ये उस टेबल में शुमार नहीं होगा। लिहाजा मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि पच्चर और पचार बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कल है और काल है में कहीं कहीं पर अलिफ ऐड हो जाता है। तो पचार मीन्स पिरंजी पचार हमारे यहाँ सिंधी में, ये शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने भी इस्तेमाल किया, किताब का भी नाम है पिरंजी पचार। प्री मीन्स प्यारे, अपने, महबूब, महबूबों की का जिक्र, पिरंजी पचार। तो उसको पचर भी बोलते हैं सिंधी में। चलो ना यार पचर छर नगाल जी, यानी इसके बारे में डिस्कस करना छोड़ दो, इसका जिक्र छोड़ दो यार, पचर छर तो नगाल जी यार, मुखे माने जी पचर नथो छरे सका, यानी मैं उसके बारे में डिस्कस करना, उसका जिक्र करना, उसका जिक्र अस्कार करना नहीं भूल सकता। आई कैन नॉट लीव डिस्कसिंग अबाउट हिम और हर। ओके, दैट इज कॉल्ड पचर है। इसको पचार भी कहा जाता है, लेकिन इस टेबल में आएगा तीनों हरूफ पर जबर वाले अल्फाज आएंगे। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। पचर, पे पर जबर, चे पर जबर, रे पर जबर, पचर। तो दिस इज डिस्कशन, जिक्र। आई एम ग्रेटफुल टू दोज हु एडेड। वका साहब ने कोशिश की, रिजवान साहब ने भी कोशिश की, लेकिन आई होप के आपने ये लफ्ज सुना होगा। गो के आम गुफ्तगू में अब ये कम इस्तेमाल होने लगा है लफ्ज, लेकिन फिर भी जो है वो इस्तेमाल होता है, और खासतौर पर अदबी जुबान में इस्तेमाल होता है, पचर या पचार। तो पर कहते हैं विंग्स को जमा में, खड्डे कहते हैं खड्डे को, और पचर कहते हैं डिस्कशन को। किसी चीज का डिस्कशन हो उसको पचर कहा जाता है। पत्थर, पत्थर उर्दू में पत्थर की जमा भी पत्थर होती है, लेकिन सिंधी में पत्थर की जमा, पहली बात तो सिंधी में पत्थर ऐसे लिखा जाता है, यानी थे की शक्ल जो है वो मुख्तलिफ होती है। वो उर्दू में मुरक्कब हर्फ की सूरत में है, सिंधी में एक पूरा हर्फ है। तो पे पर जबर है, सॉरी पे पर जबर है, थे पर जबर है, और रे पर पेश है अगर एक पत्थर है तो। अगर ज्यादा पत्थर हैं तो थे के बाद रे पर पेश है, पर सॉरी जबर है, पत्थर यानी ज्यादा पत्थर। अगर पेश है तो सिंगल है, पत्थर एक पत्थर। अगर जबर है तो ज्यादा पत्थर है। तो हम चूंकि जबर वाली टेबल का जिक्र करें तो ये हो जाएगा पत्थर, पत्थर, पत्थर के सनम। अब पत्थर के सनम तो हम एक को मुखातिब कर रहे हैं, सनम का मतलब है बुत, ठीक है। पत्थर यानी एक पत्थर, बहुत सारे पत्थर रखे हैं, इलाही सारा पत्थर रखे हैं, पत्थर। इसको सिंधी में भित्तर भी कहा जाता है, यानी पत्थर को लेकिन भित्तर में फर्क यह है कि वो मिट्टी का बना हुआ होता है। भित्तर जो है मिट्टी का बना हुआ होता है, स्टोन का बना हुआ नहीं होता। लेकिन आपको मैं सिर्फ मालूमात देने के लिए बता दूं कि शुरू में अगर इसको अगर ऐसे लिखा जाए, भित्तर, गो के ये जबर वाली टेबल में नहीं आता, लेकिन मैं सिर्फ मालूमात एक्सटेंड करने के लिए, अगर मिट्टी से बना हुआ कोई तोदा हो तो उसको भित्तर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जबर वाली टेबल का जिक्र कर रहे हैं, तो ये पत्थर, भित्तर में भे पर जेर आ जाएगी, वो इस टेबल में शुमार नहीं होगा।
तो पत्थर यानी पत्थर की जमा जो है उसको पत्थर कहा जाता है। तो पर यानी विंग्स की जमा होगी पर, जिक्र डिस्कशन उसको सिंधी में पचर कहा जाता है, पचार कहा जाता है, लेकिन जबर की टेबल में पचर आएगा, और पत्थर की जमा पत्थर आएगा, यानी बहुत सारे पत्थर, राइट। उसके बाद है खबर। अब खबर तो वही लफ्ज है जो कि उर्दू में भी है, सिंधी में भी है। खे पर जबर है, बे पर जबर है और रे पर जबर है। खे पर जबर है और बे पर जबर है, रे पर जबर है, खबर, राइट। खबर। उर्दू में यह है कि उर्दू में आखिरी हर्फ जो है वो साकिन रहता है, यानी उसमें जरूरी नहीं कि उस पर हरकत हो, लेकिन सिंधी में उस पर आखिरी हर्फ पर हरकत आना लाजमी होती है। तो खबर, खबर मीन्स खबर, न्यूज। अब न्यूज भी होती है और टू नो अबाउट एनीथिंग। यार मुझे ये खबर हुई है, मुझे ये बात पता चली है, पता चलना किसी चीज का, टू नो, खबर। खबर थी, सिंधी में कहते हैं खबर थी, तुम्हें पता है, यानी डू यू नो, उस मानी में भी इस्तेमाल होती है। और जो अखबार में आप खबर पढ़ते हैं, टीवी पर खबरें देखते हैं, उसको भी खबर बोलते हैं। न्यूज इज ऑल्सो खबर, और किसी चीज का पता चलना इज ऑल्सो खबर। वही लफ्ज है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन जबर की टेबल में इसलिए शामिल है कि इसमें आखिरी लफ्ज पर, आखिरी हर्फ पर भी जबर है। खे पर भी जबर, बे पर भी जबर, रे पर भी जबर, खबर। थोड़ी देर में ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन रिकनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आखिरी चंद एक स्लाइड्स हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट के हवाले से बताऊंगा। सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे आपके, तो 2 मिनट के लिए आप जो है वो रिकनेक्ट कर लीजिएगा जैसे ही डिस्कनेक्ट हो। तो आखिरी हम 2-3 स्लाइड्स पर हैं, 3-4 स्लाइड्स पर हैं। तो खबर कहा जाता है जो है पता चलने को या खबर को, न्यूज को। खच्चर, खे खच्चर हमने पढ़ा था, और खे से खच्चर लिखा जाता है। तो जब हम उसको वाहिद में जिक्र करते हैं तो किस तरह से आता है? खे पर जबर, चे पर जबर, और उसके बाद रे पर पेश। लेकिन जमा में लिखा जाता है तो खे पर जबर, चे पर जबर, रे पर भी जबर। खच्चर, बहुत सारे खच्चर, 2 या 2 से ज्यादा खच्चर। उर्दू में ये मशद्दद है, उर्दू में जो लिखा जाता है तो उर्दू में इस पर शद भी आती है, खच्चर ऐसे। लेकिन सिंधी में खच्चर है बगैर शद के, क्योंकि सिंधी में शद का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उसमें हरकत सिंधी में अरबी की तरह नहीं है। खच्चर, बहुत सारे खच्चर। तो खच्चर जमा में जो है वो खच्चर होगा। अगर हम वाहिद का जिक्र करें तो खच्चर होगा, जमा में जिक्र करें तो खच्चर होगा, यानी बहुत सारे खच्चर। तो पत्थर को हमने, पत्थर की जमा को पढ़ा। Excuse me, sir. Can you explain what does mean खच्चरा? उर्दू में तो क्या समझ में नहीं आया ये? खच्चर गधे और घोड़े के दरमियान जो जानवर होता है उसको खच्चर बोलते हैं। नहीं समझे आप? No, sir. Haven't you seen खच्चर? There's an animal which is larger than a donkey and smaller than a horse. It's called खच्चर. It's an animal who belongs to the donkey family or the horse family, but it is larger in size than a donkey. Donkey is smaller, so खच्चर is larger than a donkey, but smaller than a horse. Horse is higher, तो उससे छोटा होता है और गधे से बड़ा होता है, उसको खच्चर बोलते हैं। It looks like Okay, sir. it looks like a donkey, लेकिन उसके जो गर्दन के ऊपर बाल होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आप अगर हमारी, मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 2 की या 3 की स्लाइड आप देख लेंगी तो उसमें खे से खच्चर है। मुझे फिर गो थ्रू करना पड़ेगा और फिर 5 मिनट लग जाएंगे उसमें। तो खच्चर आप उसमें देख लीजिएगा कि या आप अगर रोमन में भी टाइप करेंगे गूगल में तो, या I'll ask my team to share the picture of खच्चर in the group so that you can see what is खच्चर. Khachar is an animal which belongs to Gada family, donkey family, but it's larger in size than a donkey and smaller from a horse. So that is called खच्चर. बहुत कम पाया जाता है, यानी वो अनमोल नस्ल है, लेकिन खच्चर इज एन एनिमल, सो खे इज खच्चर। तो खच्चर जब जमा में बहुत सारे खच्चर होते हैं तो उनको खच्चर कहा जाता है, राइट। Right after the lecture, I'll ask my team to share the picture of खच्चर in the group so that you can understand, जैसे हमने डाक शेयर किया था। तो खबर की जमा को खबर कहा जाता है, खच्चर की जमा यानी एनिमल, खच्चर दी एनिमल, उसकी जमा को खच्चर कहा जाता है। Who was there? Who is that lady who asked about this खच्चर? Please share your name. Sir, Rabia. रबिया साहब, थैंक यू रबिया साहब। अच्छा जी, तो आखिरी चंद एक स्लाइड्स। हुरूफ तहज्जी में जो हरूफ होते हैं उसको कहते हैं अखर। ठीक है, आप सब जानते हैं अखर यानी अ,
अलिफ पर जबर, उसके बाद खे पर जबर, उसके बाद रे पर जबर, अखर, राइट, अखर। यानी जब हम लिखते हैं लिखाई को, यानी इसकी दो मायने हैं। खुशखती को भी, या जो आप लिखते हैं अल्फाज लिखते हैं, उनको भी अखर कहा जाता है। इन्हें अखर डाडस्टान, इसकी लिखाई बहुत अच्छी है, ठीक है। और जो हरूफ है, हरूफ तहजीब में जो हरूफ हैं, कितना अखरा है? 52 अखरा है, 52 हरूफ है, तो उनको भी अखर कहा जाता है। खच्चर यानी खच्चर की जमा, खबर की जमा, पत्थर की जमा, अखर हरूफ की जमा। एक उसके मायने हैं हरूफ के जमा के तौर पर अखर इस्तेमाल होता है। और लिखाई, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसकी हैंड राइटिंग, इसके दस्तखत बहुत अच्छे हैं, तो उसको भी अखर कहा जाता है। सिंधी में कहा जाता है इन्हें अखर डाडस्टा है, हालांकि वो अल्फाज होते हैं, लेकिन सिंधी में उसको अखर कहा जाता है। फिर प्याज को सिंधी में कहते हैं बसर, ठीक है। प्याज मीन्स ऑनियंस आर कॉल्ड, सिंधी में बसर कहा जाता है एक ऑनियन को, ठीक है। बे पर जबर और उसके बाद स्वा पर जबर, रे पर पेश। लेकिन अगर जमा में लिखेंगे तो बसर हो जाएगा। बे पर जबर, स्वाद पर जबर, रे पर जबर, बसर। यानी अनियन की जो जमा है उसको बसर कहा जाता है, और अनियन की जो वाहिद है वो बसर कहलाता है, राइट। तो बसर इज द प्लूरल ऑफ अनियन की जमा को बसर कहा जाता है, बसर, राइट। अखर is the plural of a letter. Khachara is the plural of khachar, the animal, and basara is the plural of onions. Onion, the singular of onion is basaru, and the plural of onion is basara. और उसके बाद मच्छर बहुत ज्यादा है, सिंधी में मच्छर ऐसे लिखा जाएगा, मीम पर जबर, छे पर जबर, और अगर सिंगुलर है तो रे पर पेश आएगा। लेकिन हम चूंकि जबर की टेबल पढ़ रहे हैं तो रे पर जबर आएगी अगर ज्यादा मच्छरों का हम जिक्र कर रहे हैं। यानी मच्छर 2 या 2 से ज्यादा अगर हो तो उसको मच्छर कहा जाएगा। मच्छर यानी मॉस्किटोस आजकल तो तंग करते हैं सर्दियों में बहुत ज्यादा, और उम्मीद है कि आप उससे नबरदाजमा होते होंगे और जो मैट वगैरह जलाते होंगे, वरना इससे मलेरिया हो जाता है। तो ज्यादा तादाद में अगर हो तो उनको मच्छर कहा जाता है। मच्छर की जमा मच्छर कहलाता है। और जो सब्जाजार होता है, यानी लॉन में जो सब्जा फूटता है, उसको सिंधी में छबर कहा जाता है, छबर कहा जाता है। यानी वो जो सब्जाजार है जिसके ऊपर आप टहलते हैं, वो जो घास जमी होती है सब्जाजार की, उसको छबर कहा जाता है। सिंधी में उसको छबर, छे वही जो उर्दू में मरकब हर्फ के तौर पर है, चे और हे के मिलाप के साथ। फिर बे जो इंडिजीनियस सिंधी अल्फाबेट का एक लेटर है, ब, उस पर जो बे के बाद आता है अलिफ, बे और बे, ब उसका प्रोनाउंसिएशन है ब, उसका सौत है ब, और इस पर सुर लगता है जबर का, यहाँ पर लग रहा है ब। फिर रे पर भी जबर, छबर सब्जाजार को कहा जाता है, छबर। इसी तरह से गाजर को सिंधी में गजर कहा जाता है। आई होप यू ऑल आर राइटिंग दिस ऑन योर शीट। गाजर को, कैरेट को सिंधी में कहा जाता है गजर, गजर। गाफ पर भी जबर, जीम पर भी जबर, रे पर भी जबर। उर्दू में सिर्फ यह है, फर्क यह है कि गाफ के बाद अलिफ आ जाता है, सिंधी में अलिफ कट जाता है, सिंधी में गजर कहते हैं। सिंगल को गजर कहेंगे और ज्यादा को फिर गजरू कहा जाएगा, जो कि जेर की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि आखिरी हर्फ पर जबर आना मुअन्नस की भी एक निशानी होती है। ये आगे चलकर अगर जरूरी हुआ तो हम आपको पढ़ाएंगे मुअन्नस की कौन कौन सी निशानियां, किस लफ्ज को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि मुअन्नस है, दिस इज फेमिनाइन। तो गजर इज गाजर, सिंगल गाजर को कहा जाता है गजर। कैरेट, गाजर, द कैरेट। इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं, एक आध और अल्फाज का जिक्र करके फिर वाइंड अप करते हैं। कुरान पाक जिस रहल पर रखा जाता है वो रहल है। सिंगुलर अगर लिखेंगे तो रहलु हो जाएगा, जिस पर कुरान पाक रखकर उसकी तिलावत की जाती है। कोई भी मुकद्दस किताब उस पर रखी जाती है, गुरु ग्रंथ साहब भी उस पर रखा जाता है, गीता भी उस पर रखी जाती है। और अगर जमा में हो तो रहल है, वो लकड़ी का फ्रेम जो इस तरह से यानी खुलकर सामने आता है कि उस पर एक किताब खोल के रखी जा सके, उसको रहल बोलते हैं। ठीक है, एक स्टैंड फॉर अ बुक ऑन विच यू कैन ओपन अ बुक एंड यू कैन रीड इट।
जैसे कोई आपके लिए वो किताब पकड़ के खड़ा है, उसको रहल बोला जाता है। कुरान पाक का हवाला इसलिए दिया कि कुरान पाक के साथ रहल जो है वो तकरीबन हर घर में पहले से मौजूद हुआ करता था, अब भी होते होंगे। अब तो प्लास्टिक के भी रहल दस्तियाब हैं। तो रहल जो स्टैंड फॉर अ बुक इज कॉल्ड रहल। तो सिंगुलर होगा तो रहल और प्लूरल होगा तो रहल है सिंधी में, ठीक है। इसी तरह से किसी पर रहम खाने को सिंधी में कहल बोला जाता है। काफ पर भी जबर, हे पर भी जबर, लाम पर भी कहल। ये प्योर सिंधी का लफ्ज है। वैसे रहम भी सिंधी में कहा जाता है, तो खैर रहम न थोचे, मुखे न रहम थोचे, मुझे इस पर रहम आ रही। लेकिन सिंधी में ये बोला जाता है मुखे न कहल थिए, मुझे उस पर रहम आ रहा है। कहल इज टिपिकली सिंधी वर्ड फॉर रहम। काफ पर भी जबर, हे पर भी जबर, लाम पर भी जबर, कहल, राइट। और उसके बाद महल, वक्त या पहर, उसको सिंधी में उर्दू में हे के साथ लिखा जाता है या हलीम अली हे के साथ लिखा जाता है। हालांकि महल हलीम अली हे का मतलब है पैलेस, लेकिन सिंधी में उसको ऐसे लिखा जाता है महल। महल का मतलब है वक्त, घड़ी जो इस वक्त बीत रही है, महल है वो। तो मीम पर भी जबर है, हे पर भी जबर है, लाम पर भी जबर है, यानी वक्त या पहर या वो गुजरती हुई घड़ी जो उस वक्त गुजर रही है, उसको महल कहा जाता है। ये महल यानी ये वक्त खासतौर पर पर्टिकुलरली इशारा है उस टाइम की तरफ जो उस वक्त गुजर रहा है। बरमहल सिंधी में कहते हैं बरमहल, यानी वक्त पर बात की इसने, इसने बरमहल जुमला बोला, यानी उस पर बिल्कुल उसकी टाइमिंग एग्जैक्ट थी। जब उसने जुमला बोला तो बरमहल था, यानी वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर था। तो जो पहले टाइमिंग थे हो तो उन्हें महल चपा, ये महल थिया तुम अञा को नहीं आया, ये वक्त हो गया अभी तक तुम नहीं आए, तो उसको महल कहा जाता है, यानी उस पहर को कहा जाता है। और इसी तरह से खिदमत को सिंधी में टिपिकल लफ्ज है सिंधी में टहल। ताबुदों दो टहल टकोर, ठीक है। टहल, टहल कहते हैं टे पर भी जबर, ए पर भी जबर, लाम पर भी जबर। टहल कहते हैं खिदमत को। ये भी टिपिकली सिंधी का लफ्ज है जो कि किसी और जुबान में इस्तेमाल नहीं होता। टहल मीन्स खिदमत, ठीक है। टहल टकोर, इसके साथ एक सिंधी में लफ्ज होता है टहल टकोर। शायद ये पंजाब में भी इस्तेमाल होता है कि टहल टकोर, आप बैठे हैं हम आपकी टहल टकोर करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं। खिदमत को सिंधी में टहल कहा जाता है, टे पर जबर, हे पर जबर और लाम पर जबर। और उसके बाद ये आखिरी लफ्ज है सिंधी में और उर्दू में दोनों में, पीस को, यानी वेजिटेबल, आई एम टॉकिंग अबाउट पीस, द वेजिटेबल इज कॉल्ड मटर, ठीक है। तो सिंधी में अगर एक मटर होगा, वैसे एक मटर तो इतना छोटा होता है क्योंकि एक फली में ही बहुत सारे मटर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो सिंगुलर होगा तो होगा मटर, ठीक है, मटर। और अगर ज्यादा होंगे तो वो होगा मटर, ठीक है। मटर, मटर, मटर की जमा, मटर को द वेजिटेबल इन प्लूरल इज कॉल्ड मटर, सिंधी में मटर, मटर, ठीक है। तो लेट मी रिवाइज द होल टेबल फ्रॉम स्टार्ट। जो अल्फाज आपने लिखे आपकी इस आज की शीट में, इस मश्क की शीट में, देखते हैं किस किस ने कौन कौन से अल्फाज लिखे। शुरू किया हमने घर से, घर की जमा घर। पत्ते को सिंधी में पन्नु कहा जाता है, उसकी जमा पन्ना। कान को सिंधी में कन्नु कहा जाता है, अलिफ कट जाएगा, कान नहीं काट दीजिएगा, अलिफ काटिएगा तो बन जाता है कन्ना। और जख्म को सिंधी में फट्टू कहा जाता है, जमा में फट्ट। हाथ को सिंधी में हाथ कहा जाता है हथु, जमा में या दो हाथों को हथ। उसके बाद चारपाई को खट कहा जाता है, और खट इटसेल्फ इज अ मोनस एंड अ सिंगुलर, ज्यादा होगा तो खट खटू हो जाएगा। इसी तरह से जबल, माउंटेन्स पहाड़ को, पहाड़ों को जबल कहा जाएगा, सिंगल को जबल कहा जाएगा। लेकिन हम जबर वाली टेबल की मशक कर रहे हैं, तो लिहाजा इसमें तमाम ऐसे अल्फाज शामिल हैं जिनके तमाम हरूफ पर जबर लगी है। मटका, उसकी जमा, मटके को मट्टू कहते हैं, जमा को मट्टा कहेंगे। हैंडल, हैंडल को गन्नू कहते हैं, लेकिन जब हम जमा की बात करेंगे तो गन्ना कहेंगे, यानी बहुत सारे हैंडल्स। हल जो प्लो किया जाता है, जिससे हार्वेस्टिंग होती है, तो उसको हर्रो कहा जाता है सिंधी में। ज्यादा होंगे तो हर्रे कहा जाएगा, हल यानी जमा में। बैगेज को, बोरिया बिस्तर को, रखते सफर को सिंधी में लड्डा कहा जाता है, बड्डा भी कहा जाता है, हड़ भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपने ये एक लफ्ज भी कम से कम नोट कर लिया तो दैट विल बी योर मिनिमम एक्सरसाइज अबाउट दिस। फिर उसके बाद खड्डे को सिंधी में खड्डा बोलते हैं, जो कि मुअन्नस है। पर की जमा को, सिंगल को पर कहा जाता है, बालों पर, यानी विंग्स, जो कि परिंदे की भी होती है, जहाज की भी होती है, तो उन विंग्स को सिंधी में पर्रो कहा जाता है, जमा में पर। और
जिक्र को, डिस्कशन को पचर है, पचार भी कहा जाता है, लेकिन जबर का चार्ट है तो पचर है। पत्थर की जमा को पत्थर है। खबर की जमा को खबर है, खबर है, खबर है, तुम्हें पता है, खबर है, टू नो और द न्यूज, खबर है, ठीक है, पता होना या खबर, जो अखबार में छपती है वो भी खबर है, जो आपको पता हो या ना हो, आपको पता है या नहीं है वो भी खबर, खबर होना या खबर ना हो। उसके बाद खच्चर है, खच्चर की जमा द एनिमल, as I told you, which is larger than a donkey and smaller than a horse in size, not in age. फिर उसके बाद अखर है, अखर मीन्स हरूफ या खत, खत यानी लिखना, खत का मतलब है राइटिंग, तो अखर है यानी जमा में बयान किया जाता है। फिर बसर है, बसर इज वन अनियन एंड बसर मीन्स मैनी ऑनियंस। फिर मच्छर है, मच्छर मीन्स एक मच्छर और मच्छर मीन्स बहुत सारे मच्छर। छबर सब्जादार को कहा जाता है विच इज मॉनस, और छबर जिस पर आप सुबह कहा जाता है कि नंगे पांव टहला जाता है और अच्छा है सेहत के लिए, तो उस सब्जादार को, उस घास को जो कि लॉन में होती है, उसको छबर कहा जाता है। छबर फुटिया, यहाँ पर घास फूटी है। गजर कैरेट को कहा जाता है, गाजर को कहा जाता है। रहल, रहल की जमा जिस पर कुरान पाक रखा जाता है। कहल रहम को कहा जाता है, और महल वक्त को कहा जाता है। टहल खिदमत को कहा जाता है। इसके साथ एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे खिदमत चाकरी, जी गड इस्तेमाल करना है, इस तरह से बहुत सारे, जैसे सब्र इस्तकामत एक साथ इस्तेमाल होते हैं। दो अल्फाज हैं लेकिन लाज़िम मलज़ूम समझे जाते हैं एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करने के लिए। खुशू खुजू एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह सिंधी में टहल टकोर, उसके साथ जो है वो साथ में इस्तेमाल किया। वैसे टकोर करना आपको पता है कि किसी चीज़ को गर्म करके किसी जख्म को पर लगाने को कहा जाता है, लेकिन टहल टकोर का मतलब है कि मे वी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, may we take care of you as a guest। तो गेस्ट की जो खिदमत की जाती है उसको टहल कहा जाता है, टहल टकोर कहा जाता है। सिंधी में टहल है, दिस इज मोनस, दिस इज फेमिनाइन। महला के बाद टहल, फिर मटर की जमा को हमने मटर, मटर, ये मटर की जमा है। आई होप यू हैव नोटेड ऑल दीज वर्ड्स। नाउ बिफोर वाइंडिंग अप द क्लास, अगर खास करे असांजा उहे दोस्त थे ना जेके जिनकी बोली ना ही या, उनके लिए तो मुश्किल हो गया जिनकी जुबान नहीं है, लेकिन जिनकी जुबान है, अगर आपके जहन में भी ऐसे अल्फाज हैं, यकीनन होंगे, जो कि 2 या 3 या 4 हरूफ पर मुश्तमिल हैं और सब पर जबर लगती है, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इन अल्फाज के नीचे एक लाइन लगाएंगे, फिर नीचे अगर हमारे वो दोस्त जिन मादरी बोली सिंधी आहे, उन्हनि खे ॿिया बि अहिड़ा जेके लफ़्ज़ ज़हन में अचनि था जिन सां ज़बर लॻंदी, सभिनी ते ज़बर लॻणु घुरिजे, कंहिं बि हिकिड़े ते ज़ेर या पेश न अचणु घुरिजे। सभिनी अखरनि ते या साकिन न हुजणु घुरिजे, को बि लफ़्ज़ सभिनी ते ज़बर अचणु घुरिजे। जेकॾहिं अहिड़ो 1 या 2 या 3 या 10 लफ़्ज़ तव्हांखे ज़हन में अचनि था, मैक्सिमम तव्हां हुनजा 10 या 15 लफ़्ज़ लिखियो, वधीक न। ईअं त हज़ारे लफ़्ज़ हूंदा, तव्हांजा पना भरिजी वेंदा। त तव्हां उहो लाइन लॻाए, हेठां जेतिरो स्पेस बचे थो, 1 2 3 4, इहो लाज़मी न आहे, बट इफ यू राइट त उहो तव्हांजी हिकिड़ी मतलब हिकिड़ी पॉइंट त सभिनी खे बराबरि मिलंदियूं, पर तव्हांखे एक्स्ट्रा शाबाशी मिलंदी, हुनजी शाबाश मिलंदी, तव्हांखे आफ़रीन मिलंदी। त यू हैव टाइम टिल 8 PM, दिस इज 6:35 PM, तो आपके पास 1 घंटा 25 मिनट है। तो अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो अभी आप इसका स्नैपशॉट लें और एडमिन को आप ये पोस्ट कर दें विद योर नेम। योर नेम शुड बी रिटन क्लियरली, और उसके नीचे आपका शहर, और शहर के साथ मुल्क का नाम, क्योंकि द फ्रेंड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आर आल्सो ज्वाइनिंग अस, तो जो है वो अपने नाम के साथ अपने शहर और अपने मुल्क का नाम भी लिखें, और नीचे ये तमाम मश्क जो है। वकास, यू हैव अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क प्रॉम्प्टली। यस सर। सर मैं पूछना नहीं हो सर, मैं पूछना चाह रहा था कि रफली भले लिखा हुआ चल जाएगा ना सर? हाँ, मश्क तो रफी होती है ना, मश्क कोई फेयर थोड़ी होती है, मश्क रफ होती है। लेकिन ऐसे हो कि मुझे पढ़ने में आ जाए, ऐसे हो, ये मेहरबानी कीजिए कि पढ़ने में आ जाए मेरे, और स्नैपशॉट भी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कीजिए। पढ़ने आएगा, हाँ, पढ़ने में आ जाए। मश्क में काटा पेटी तो होती है ना, वो फेयर थोड़ी होती है। फेयर असाइनमेंट नहीं, दिस इज नॉट अ फेयर असाइनमेंट। मश्क में ये होता है, काटा पेटी होती है, आप लिखते हैं फिर मिटाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि ये पता चलेगा कि आप लिखते रहें, फिर मिटाते रहें, फिर लिखते रहें, कोई मसला नहीं। दिस इज नॉट एन इशू। आई वांट टू सी दिस ब्यूटी, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ रफ राइटिंग, इज अ ब्यूटी ऑफ एक्सरसाइज, सो कैरी ऑन विद दिस। ओके सर, बस थैंक यू वकास साहब। तो 8 बजे तक ये टाइम है, आप ये असाइनमेंट जमा करवाएंगे। कल हम जेर वाला चार्ट पढ़ेंगे। आज के इस सेशन में
आयशा खान साहब ने पार्टिसिपेट किया, मसूद अहमद साहब ने पार्टिसिपेट किया, जलील साहब ने पार्टिसिपेट किया 3-4 मरतबा, इमरान जकरिया साहब ने पार्टिसिपेट किया, आयशा खान साहब ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने जो रोमन की सजेशन दी, दैट इज नोटेड, वेरी मच नोटेड, एंड दैट विल बी इंक्लूडेड राइट फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह. And thank you very much. I acknowledge your input Sir, in it is this Aisha regard. Tariq, not Aisha Khan. Oh, sorry, Aisha My Tariq. respective friends, there Okay. are more than Okay. 2 Aishas, but it is Aisha Tariq. Aisha Tariq sir, this was suggestion from your side, Aisha Tariq. Please mute yourself, sir. Respected sir, please mute yourself. You, आपकी गपशप भी चल रही है और फिर वो इंटरप्शन होती है. Please mute yourself. Can't you hear yourself? मुझे concluding remarks तो देने दें भाई. Oh my God. Waqas साहब, can you mute yourself? Thank you very much, sir. वॾा आसान था, महिरबानी मुल्क तोरा था. म्यूट तो क्यों ताकि लगे तो ना शर्मिंदा तो क्या पर मतलब ये that disturbs. Let me conclude this session. So Aisha Tariq Sahib, thank you for your suggestion, and your suggestion is very much acknowledged, and this will be included right from tomorrow. And जब भी मैं कहता हूँ कि आप सब जो है वो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आपकी तरफ से जो फीडबैक आता है. तो वकास साहब भी शामिल रहे, मकसूद अली साहब भी शामिल रहे, करीम साहब तमाम मेहरबानी कर शामिल रहे हो, शादी असराज साहब शामिल रही, फजीला साहिबा, रिजवान साहब शामिल रहे, और रबिया साहब शामिल रहे. थैंक यू वेरी मच कि आप सब शामिल रहे. और मैं चाहता हूं कि हर क्लास में आपकी तरफ से मैक्सिमम प्रेजेंस हो, अपीयरेंस हो. और ये सिर्फ अभी नोट, जी हाँ, जो अभी नोट डाउन किए एरम नाज साहिबा, यही मतलब इसको दोबारा से फेयर नहीं करना. ये जो आपने नोट डाउन किए हैं, लेट मी सी योर हैंडराइटिंग टू. तो ये एक्सरसाइज, मैंने कहा एक्सरसाइज का हुस्न है, जैसे काटा पीटी है, रफ लिखा हुआ कोई मसला नहीं. गो विद दैट. तो आई होप के ये एक जो मश्क है आपके लिए कारगर रही होगी, और कुछ ज्यादा आपने फोकसिंग ऑन ऑल दी 4 लैंग्वेज स्किल्स कुछ इंप्रूव हुए होंगे. सिंगल साइडेडली आप सुनते रहे, आप पार्टिसिपेट भी करते रहे, लेकिन आज आपने लिखा भी है मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पर, या व्हाइट बोर्ड पर, या डिजिटल बोर्ड पर. जो कुछ आपने देखा वो मेरे साथ साथ लिखते भी रहे हैं, मैं भी आपके साथ साथ लिखता रहा. तो आई होप के दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. और कितना बेनिफिशियल होगा ये मैं कल फिर आपसे फीडबैक रिफ्लेक्शंस लूंगा इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन. कल मैं आपसे रिफ्लेक्शंस लूंगा स्टार्ट ऑफ द सेशन में, और ये भी पूछूंगा कि लिखने पढ़ने में और पढ़ने लिखने में क्या फर्क है, क्या इनमें कोई फर्क है या एक ही बात है, लिखा पढ़ा होना या पढ़ा लिखा होना, इन दोनों में क्या फर्क है. इससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. और धाम धूम और धूमधाम भी बताइएगा मुझे. इज देयर एनी क्वेश्चन जकरिया साहब? इमरान जकरिया साहब, इज देयर एनी क्वेश्चन? जी फरमाइए. सर, ये मैंने जो अभी काम लिखा है, लाइट आपको पीडीएफ भेज, घर का पानी कम कर. मां पंहिंजे हाँ में जो सोच रहे थे, तव्हांजी ॻाल्हि सम्झण जी कोशिश कयां थो. मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात समझूं. आप गालिबन ये कह रहे हैं कि क्योंकि आवाज कट रही है आपकी काफी, कि लाइट का प्रॉब्लम है कोई, ये आप कह रहे हैं? जी सर, हमारे इलाके में ये 1 घंटा सारे दिन में लाइट होती है. मैं कहता हूँ कि आपको अगर न कर दूं, मैंने लिया का काम है, मैंने जाना है वो. नहीं, आपके उसमें फोन में एक फ्लैश भी तो होता है ना, वो तो फ्लैश से आप तस्वीर ले लेंगे, उसमें लाइट होने या ना होने का तो मेरे ख्याल में कोई वो नहीं है, इशू नहीं होना चाहिए. तो फ्लैश लाइट ऑन करके आप उससे अच्छा, मैं सर ठीक है सर, ठीक है, भेज दें. पीडीएफ करने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही भेज दें. जी रिजवान खान साहब, यू हैव अ क्वेश्चन? ठीक है. थैंक यू सर, थैंक यू. रिजवान खान साहब, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. साईं छाते मोकिलण साईं जो लिखियो है व्हाट्सएप ग्रुप ते मोकिले छॾियो या मेल करे छॾियो. जेको व्हाट्सएप नंबर जेको तव्हां पहिरियों हुयो, व्हाट्सएप ग्रुप आहे न, तव्हां व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल आहियो ना? सही. आर यू इंक्लूडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप और नॉट? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ. नहीं तो फिर आप मेल कर दें. हाँ साईं, एड आहियूं साईं. ऐड आयो तो तव्हां हुनजे एडमिन खे मोकिले ॾियो, हुनजे एडमिन खे तव्हां मोकिले ॾियो. ठीक है. Any other questions? सही. There is somebody else also. मेहरबानी. Thank you very much. मामूल से थोड़ा सा ज्यादा आपका वक्त ले लिया. I'm sorry for that. Is there any questions? Is there any questions? I think there's somebody with us. If you have a question, जी करीम साहब, कोई सवाल है?
सर पीडीएफ में आप स्लाइड का भेज दें, ये लेक्चर आए हैं, उसके बाद पीडीएफ में नहीं आए सर। पीडीएफ में न मोकिलियो न, तव्हां सिंपल मोकिले छॾियो, जीअं फोटो कढी मोकिलिबो आहे न, स्नैपशॉट कढी मोकिलिबो आहे, तव्हां मोकिले छॾियो। पीडीएफ में आपको जो लेक्चर आए उसके बाद नहीं आए सर, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। मूंखे तव्हांजो स्लाइड आवाज़ जो आप भेजते हैं आवाज़ कटिजे थो, सम्झ में नथो अचे, तव्हां पुछण छा था चाहियो, ॿीहर पुछो। सर मैं कह रहा हूँ 6 स्लाइड नहीं आई, 6 के डाल करीमुख साहब तव्हांजो आवाज़ ग्रुप में तव्हांजो आवाज़ कटिजे थो पियो, ऐं तव्हांजो जेको बि सुवाल आहे तव्हां एडमिन खां करे वठो, तव्हांखे उहो एड्रेस करे वठंदो, ठीकु आहे। तव्हांजो 2-3 दफ़ा तव्हां चयो तव्हांजो आवाज़ ठीक है, कटिजे थो थैंक पियो, यू। त तव्हां शायदि चओ ठीक था है, ठीक है, ठीक है। 6 स्लाइड्स आयूं ऐं शायदि तव्हां भरियल तव्हां मोकिले ॾियो सुवाल, तव्हांखे हुनखे एड्रेस कयो वेंदो। थैंक यू सो मच एवरीबडी हू पार्टिसिपेटेड, हू अटेंडेड दिस क्लास, एंड दिस वाज क्लास नंबर 9, एंड हमने सिंधी अलिफ-बे की पट्टी में ज़बर वाली पट्टी पढ़ी, जो कि तीसरी पट्टी थी, और फिर हम ये 20 पट्टियाँ मुकम्मल करेंगे, 20 जदवलें मुकम्मल करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें सौती हवाले से भी और अशकाल के हवाले से भी आपके जहन में क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट 5 PM एज पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इंशाअल्लाह अज़ीज़। त सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, ऐं मूंखे उमेद आहे त वरी सिखण जे नए जोश ऐं जज़्बे सां वरी तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। सो thank you very much on the behalf of Sindhi Language Authority, Government of Sindh, and see you tomorrow in tomorrow will be class number 10, and this will be 11th of January 2024. मूंखे पंहिंजे इंस्ट्रक्टर यासिर काज़ी खे इजाज़त ॾींदा, सदाईं ख़ुशि हुजो, दिलियूं गॾु जुदाई कॾहिं बि न आहे, सदाईं गॾु जिना फिर देना ख़ैर, अल्लाह ने के बाद।